something about yourself and your journey from MITS uh, to where you are right now as an individual and as an entrepreneur. So yes, go. Okay. So I think this started a long back ago in 2020 when I started the freelancing stuff. It was all online, most of the part. Some of it was offline as well from my connections that in my local city, but it went, I think most of the people already know, but just to summarize it all. So it started back in 2020 with freelancing. And then eventually, when I grew my connections, grew my network in the freelancing world, and I built my portfolio, I thought that probably this is the time when I should start my own company because I was having that bandwidth and client base. So over the period of time, I think it was March 2021 when I registered my company. So before that, it was kind of freelancing only, but the official, the legal thing that we can say, do tech, that came into light in March 2021, came into existence, I would say. And then I think eventually, after 1 year, I think probably my job was, yeah, March 2022. So after working 1 year for my own company, so I got a call from this Time Labs from New York. It was one of my connections only. So he called me for an interview that, okay, we like your profile. Can you please, this is the role, product operations manager. We would like to interview you for this role as you find to seems a fit for it. So that's how it went. And fortunately, I would say by God's grace, I got the job because there were a lot of people, a lot of the other talented people as well, talented, like more than talented from me. So it was all a luck factor, you can say. Most of the part, you can say it was a luck factor, and you should be presentable also. So there are two, Yeah, three things that you should keep in mind when you're giving an interview. So first is obviously the skills that you are building in yourself, and that counts only 40%, by the way. 60% is all the presentable thing, and some of it you can call it luck as well. I mean, let's split it like 30, 30, and 40. So 40% I would say is luck, 30% skills, and 30% would be your presentation skills. Even if you don't know, then if you are presentable, then probably you will get the job instead of the one that who's more talented than you but is not that presentable. So yeah, I got the job for that, and then I switched another company that is in Dallas, Texas. So as a product manager again, and then I again switched my job. I switched my job two times within 1.5 years of tenure. And my recent company was Falconix, where I was the operations manager. It is a SaaS-based marketing company where we deliver marketing tools and SaaS-based marketing products to our clients globally. That's a Florida-based company, and I left that company in August because I planned to do my master's in the US. So currently, I'm yeah. doing my master's in business analytics and product management. So yeah, that's how it's So going. while I was researching about you, I firstly saw this thing only that you are currently doing masters in business analytics and project management. So yeah, I was just about to ask you your experience. Like this is quite new thing for you. I was about to ask the experience. Yeah. So you're talking about the exposure or like what? So like how is the masters going there? Like your work life and yeah, Hmm. obviously you're pursuing your higher Okay. study. So how is Okay, I'll tell you one thing. So, basically, there's a norm in the US that you cannot work when you are studying. So, I had to leave my job, but that's again on a okay? break. Yeah, Okay. that's on a break. So, so like, I was in good terms with the CEO, so he allowed me to do masters. So, I'm on a Yeah. break right now. I've not given my resignation, but yeah, it's a break. And so I think there's one more thing, a legal compliance that you cannot work until and unless 9 months are passed in a CPT period. That's a term in US, I think practical training or something. So once your CPT starts, then only you can work in the US while you are studying. So for these all Okay. 9 months, I only have to study. And currently I'm managing my company stuff then, which is based in India, Ludo Technologies. Yeah. Yeah. So Yeah. right now I'm only occupied by two things. So that is my masters, and my startup. Yeah. 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 Started. Right. So.
So I would like to tell you that अभी हमारे यहाँ induction program हुआ for the new batch, and the people you are seeing here are, I think, mostly from the new batch itself. So please do tell how was your college life, and like what exposure did college gave you, and how was your journey in college? Because लोगों को ये रहता है कि सर पढ़ते ही रहते थे क्या हमेशा. So please do tell कि college life कैसी थी आपकी. बिल्कुल नहीं भाई, पढ़ने लिखने से तो कोई ज्यादा मेरा वास्ता नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, मजाक कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत तो सबको पढ़ना पड़ता है, ये जोक था। तो देखो, फर्स्ट और सेकंड ईयर में जो लोग अभी अभी नए आए हैं, तो इतना लोड लेने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट और सेकंड ईयर में तो आराम से क्लब्स वगैरह ज्वाइन करो, मस्ती करो, और जितना हो सकता है एक्सप्लोर करो, मैं कहूँगा। क्योंकि तुम लोगों को भी पता नहीं है कि तुम्हें करना क्या है। अगर तुम लोग भी मतलब अगर भेड़ चाल में गए, तो जैसे मुझे बताने वाले कम लोग थे, मैं ये नहीं कहूँ कोई नहीं था, बट हाँ, मुझे धीमे धीमे जब मैं इंटरेक्ट किया अपने alumni या सीनियर्स से फर्स्ट सेकंड ईयर में, तो मुझे पता चला कि एक्चुअली मुझे क्या करना है। नहीं, वरना मैं भेड़ चाल में कुछ नहीं था कि ओके, मुझे ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये स्टेप्स हैं और इससे मुझे ये जॉब मिलेगी। सो वो मैं कर रहा था ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में, बट सेकंड ईयर तक मुझे समझ में आया कि ये नहीं करना है, क्योंकि मुझे उसमें कुछ इंटरेस्ट नहीं आ रहा था, पहली बात तो। और दूसरी चीज़, फिर जब मुझे पता चला एक्चुअली कि ये प्रोसेस नहीं है, ये प्रोसीजर नहीं है करने का। सबका रोड मैप टू सक्सेस सेम नहीं हो सकता कि अगर मेरी किसी एलुमनाई सेम चीज़ करी है, तो मैं भी वही फॉलो करूँ तो मैं सेम जगह पहुंचूंगा। फर्स्ट थिंग। Yes. सेकेंड इज ये कि तुम लोग अपना इंटरेस्ट भी एक्सप्लोर करना पड़ेगा, देन ही तुम अपना खुद का रोड मैप टू सक्सेस बिल्ड कर पाओगे। तो ऐसा Yeah, नहीं है कि मैंने yeah. इस मीटिंग में आके अगर कोई भी चीज़ बोल दी कि ये स्टेप्स होते हैं फॉर मतलब कि अगर कोई प्रोफाइल है, नीच प्रोफाइल की, हाँ, अगर तुम्हें इस प्रोफाइल तक पहुंचना है तो ये स्टेप्स हो सकते हैं, देन आई थिंक दैट विल मेक सेंस। बट अगर मैंने बहुत जेनेरिक यूज़ किया कि तुम्हें एसडी में जाना है एंड देन यू हैव टू फॉलो दीज रोड मैप्स, सो सबका रोड मैप टू सक्सेस अलग ही होगा, चाहे वो कोई भी बंदा हो, आयुषी हो या कोई भी हो, सबका अपना अपने हिसाब से होगा कि उसकी क्या स्किल्स हैं, देन ही और शी विल बी एबल टू बिल्ड अ एंड Yeah. सो वो तुम लोग को एक्सप्लोर करने में अभी टाइम है थोड़ा सा। तो मैं ये कहूँगा फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करो, क्लब क्लब ज्वाइन करो, अपनी थोड़ी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी करो, प्रेजेंटेबल रखो अपने आप को। क्योंकि फर्स्ट सेकंड ईयर में तुम्हें यही सीखना रहेगा मेनली। जो जो प्रॉपर ट्रेनिंग होगी वो कॉलेज आई थिंक कराएगा तुम्हारी। या तुम ऑनलाइन भी देख सकते हो कि इंटरव्यू में कैसे हमें प्रेजेंटेबल रहना है, क्या क्या बोलना है, क्या वर्ड्स यूज़ करना है, वो सब चीज़ें। बट जो परफेक्ट ट्रेनिंग होती है ना, वो यूजुअली फर्स्ट और सेकंड ईयर में होगी नेटवर्किंग करके कॉलेज में, कि मेरे दोस्त ये कर रहे हैं, या ये क्लब क्या कर रहा है, इस क्लब से क्या एक्सपोजर मिल रहा है मुझे, या जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है। जैसे मैंने तो एक ही क्लब ज्वाइन किया था, हालांकि मेरा मेरा पर्सनल इंटरेस्ट था नहीं मेजोरिटी क्लब्स में, बट मैंने जिसमें मेरा इंटरेस्ट था मैंने वो ज्वाइन किया, वो फिल्म एंड फोटोग्राफी क्लब था। तो मेरा फिल्म मेकिंग साइड थोड़ा सा इंटरेस्ट है, वो एज अ हॉबी परस्यू करता हूँ मैं कभी कभी जब मुझे टाइम मिलता है। सो मैंने वो क्लब Okay. ज्वाइन किया था। तो उसमें आई थिंक मैं एक साल रहा, तो मुझे मुझे उसमें ठीक ठाक एक्सपोजर मिला। जो मुझे करना था एक्चुअली, वो मुझे समझ में आया कि मतलब करना था एक्चुअली एज इन कि उस क्लब में बेसिकली आप इंटरेक्ट कर रहे हो या रिप्रेजेंट कर रहे हो, वो सब चीज़ें, या प्रेजेंटेशन दे रहे हो कभी, या इस टाइप का। इससे आप थोड़ा सा खुलते हो, पब्लिक स्पीकिंग आपकी इंप्रूव होती है और आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो ये सब चीज़ें फर्स्ट सेकेंड ईयर तक ज़रूरी हैं। सेकेंड ईयर तक मैं कहूँगा थोड़ा क्लब्स वगैरह फिर कम करके, ये नहीं एकदम ख़त्म करके, कम करके अपना दूसरी साइड तुम फोकस कर सकते हो कि अब तुम्हें क्या प्लान करना है अपने लिए। सो कोई भी Okay. टेक्नोलॉजी टूल या तुम देख रहे हो, या तुम्हें कोई टेक्नोलॉजी बहुत फैसिनेट कर रही है, वो एक्सप्लोर करो, उसके बारे में पढ़ो थोड़ा। मतलब पढ़ो एज इन ये नहीं कि पूरी कोडिंग तुमने कर दी, पढ़ो मतलब एक्सप्लोर करो कोडिंग वगैरह वाला जो पार्ट, जो क्योंकि एक बार तुम घुसे कोडिंग में, तो फिर तुम, अगर ऐसा नहीं होता इसमें कि तुमने 8 महीने किसी को दे दिए और अब तुम सोच रहे हो ये तो मेरे को पसंद ही नहीं था, मैंने क्यों दिया 8 महीने। तो इसीलिए जिस भी चीज़ Yeah. में तुम घुस रहे हो, सो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम बहुत सोच समझ के उसमें घुसो। ठीक है, सेकेंड ईयर तक ये हो जाएगा, एंड थर्ड ईयर तक फिर तुम अपना स्टार्ट कर सकते हो कि हाँ अब है, तो मुझे समझ में आ गया, मुझे ये पसंद है। और अब कोई मतलब इसमें ये सीन नहीं है कि मुझे पसंद नहीं आ रहा है या कुछ है। तुमने सब अपनी चॉइस से सेलेक्ट करके 2 साल में रिसर्च करके अच्छे से पसंद किया, देन उस पर तुम बिल्ड कर सकते हो थर्ड ईयर में। कोडिंग वोडिंग या जो भी, जिस भी फील्ड में तुम्हें जाना है, जरूरी नहीं है यहाँ से कोडिंग ही निकलते हैं, बिजनेस एनालिटिक्स प्रोफाइल भी निकलती हैं, डेटा एनालिस्ट प्रोफाइल भी निकलती हैं, मैनेजमेंट प्रोफाइल्स भी निकलती हैं। Yes. Thank you, sir. So, so, Adding to your question, sir, Ayushi, what do you think? Yeah, yeah. आयुषी सर, एडिंग टू योर क्वेश्चन सर, मतलब जैसे एक कोई बंदा अगर फर्स्ट ईयर में आता है तो उसको अगर कोई नॉलेज नहीं है, तो आपके लिए आपके अकॉर्डिंग क्या परफेक्ट रोड मैप होना चाहिए? हम्म देखो अच्छा, एक चीज़ और इससे मुझे ध्यान आया, तो हमारी मीटिंग थोड़ी सी स्मूथ रहेगी।
जब भी किसी को कुछ भी पूछना है, सो वो, ताकि वॉइस ओवरलैप ना हो, ये रेज हैंड का ऑप्शन होता है इधर नीचे एक, वो ऊपर कर देना, मैं यहाँ से पिक कर लूँगा क्वेश्चन, ठीक है। एंड सब लोग अपने आप को म्यूट ही रखना, क्योंकि नॉइज़ आती है तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। ओके, हाँ, तुम्हारा क्वेश्चन क्या था, एक बार सॉरी फिर से रिपीट करोगे? सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे अगर कोई फर्स्ट ईयर में आता है तो आपके अकॉर्डिंग क्या परफेक्ट रोड मैप होना चाहिए? क्योंकि जैसे आपने बोला कि सबके लिए अलग-अलग होता है रोड मैप, बट अकॉर्डिंग टू यू व्हाट इज़ अ परफेक्ट रोड मैप? अकॉर्डिंग टू मी नथिंग इज अ परफेक्ट रोड मैप यार, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, सब मेरे लिए जो मैंने भी, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे मुझे पता नहीं था मुझे क्या क्या करना है। ऐसा होता है जैसे मैं, फॉर एग्जांपल, एक नॉर्मल एनालॉजी है कि एक रास्ता है ए से जेड तक का, तो मैं गया, मैं ए पे हूँ अभी, फिर मैं गया बी पे, फिर बी पे मुझे चार रास्ते मिले, उसमें से मैंने चारों एक्सप्लोर करके देखे, मुझे जिसमें इंटरेस्ट आया, मान लो मुझे कोई भी एक एक्स रास्ता है वो उसमें इंटरेस्ट है, फिर एक्स में मैं गया, एक्स में मुझे और चीज़ें मिली एक्सप्लोर करने के लिए, तो ये जो है एक्स वाई जेड, यहाँ पे ये चीज़ें, जैसे डोमेन है तुम्हारा डेवलपमेंट में तुम जाओगे, तुम्हें डेवलपमेंट नहीं, तुम्हारा आईटी डोमेन है, आईटी में तुम गए, आईटी में तुम्हें मिले डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डेवऑप्स, सर्वर साइड, डेटाबेस, फिर तुम डेटाबेस में गए, डेटाबेस में तुम मोंगो, एसक्यूएल, नो एसक्यूएल, मारिया डीबी, ये सब, फिर सर्वर साइड तुमको से ए डब्ल्यू एस, नेक्सस, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो तुम्हें अपना डोमेन सेलेक्ट करना है, और ऐसा नहीं है कि एक ही में जाना है, तुम मल्टीपल चीज़ें भी कर सकते हो अगर तुम्हारा फुल स्टैक है। तो फॉर एग्जांपल तुमने फ्रंट एंड से कुछ उठाया, तुमने बैक एंड से कुछ उठाया, तुमने डीबीएमएस कर लिया किसी चीज़ में, मोंगो वोंगो में, तुमने मर्न स्टैक में बना ली अपनी प्रोफाइल। सो वो तुम्हें खुद से एक्सप्लोर करना है, एंड देन एक बार तुमने अपनी स्किल डेवलप कर ली, तो हाँ, सबसे पहली चीज़ तो ये कि ऐसा नहीं है कि बस तुम्हें पता है और तुम जा रहे हो क्लाइंट के पास कि मुझे तो सब पता है, मर्न स्टैक का आता कुछ नहीं कोडिंग करना, बट पता है, तुम चले गए किसी के पास कि मुझे जॉब दे दो या मुझे प्रोजेक्ट दे दो, मुझे मर्नस्टैक के बारे में पता है, मैं पढ़ के कर लूँगा, तो ये कभी नहीं होता, ये मेरे साथ हो चुका है, मैंने ये गलती करी थी, ये बेवकूफ़ी करी थी मैंने। तो मुझे कोडिंग का, मुझे आती थी, बट डायनेमिक प्रोग्रामिंग मुझे आती थी, जो अपन ये हैकर रैंक और लीड कोड पे करते हैं, बट जो एक्चुअल डेवलपमेंट था, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट, उसका मुझे हल्का हल्का से नॉलेज था। तो आई थिंक मुझे इस कारण से ही प्रोजेक्ट नहीं मिल रहे थे एक टाइम तक फ्रीलांसिंग में, फिर जब मुझे ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि ये गलत, मतलब ये चीज़ मैं गलत कर रहा हूँ, इस कारण से मुझे प्रोजेक्ट नहीं मिल रहा है, देन उसके बाद आई थिंक मैंने 3 या 4 महीने मॉडर्न स्टैक किया काफ़ी अच्छे तरीके से, सब कुछ डीएसए वगैरह, मॉडर्न स्टैक और डीबीएमएस बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा, ऊप्स के पढ़े थोड़ी बहुत चीज़ें। सो उसके बाद फिर मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट मिला, जब, क्योंकि जब आप जाते हो क्लाइंट के सामने, वो 50 क्वेश्चन आपसे करेगा ये जानने के लिए कि आपको वो चीज़ आती है कि नहीं जो वो चाह रहा है, उस अनटिल अनलेस वो प्रोजेक्ट देगा नहीं या जॉब देगा नहीं। सो वो है, तो जैसे तुम बोल रहे हो कि परफेक्ट रोड मैप, तो यही है कि जो मैंने बताया कि एक्सप्लोर करते जाओ, अब मुझे करना है वो तुम अपनी समझ से करोगे, वो मैं नहीं बताऊंगा कि अच्छा अनिकेत तुम अब जाओ डीबीएमएस, अब तुम चलो मारिया डीबी, फिर अब तुम ये करो इसमें, अब तुम ये क्वेरी करो, फिर उसके बाद ये प्रैक्टिस करो। वो एक जनरल बता सकता हूँ मैं कि हाँ ये चीज़ें हैं, तुम ये रेफरेंस ले सकते हो इन मटेरियल से, बट एट द एंड ऑफ द डे एक्सप्लोर तुम्हें ही करना है। सो नथिंग इज अ परफेक्ट रोड मैप, आई वुड से इट इज समथिंग यू हैव टू बिल्ड एंड एक्सप्लोर। Yes. So this is quite a question I would like to ask you that आप बहुत कुछ करते हो, तो आप अपने आप को क्या एक पर्टिकुलर वर्ड देना चाहोगे? You are an entrepreneur. You have founded your company. You are like managing that. So if anybody would ask you, what would you say? What are you like? You'll consider yourself an entrepreneur or a project co-founder and what? I think I would say I would love to be on the entrepreneur side, because at the end of the day, I mean, I would like to return back to my home country. I right now I'm in the US, just if anyone is not knowing that. So I would like to return back to my home country after I am done exploring in the US corporate world, and I would like to sustain my own company, which I'm already doing right now. So I'm just setting the bases over here, and then my plan is to get back to my country and run my own company. So that is where I stand. So I don't like to work 9 to 5. Yeah. That's not me. Yeah. Yes. Okay. So Arjun का And एक क्वेश्चन दिख रहा है मुझे शायद. Yeah. Sorry to cut in between. Hello, हाँ hello. Arjun. Mm-hmm. Sir, can you tell me that what does your basically company do? Like in what portfolio it is working? Okay. Wait.
I'm dropping the website link just for reference, but हाँ मैं बताऊंगा अभी कि हम क्या करते हैं exactly. So basically, we deliver services to clients to to our clients that are globally distributed in domains like IT and web development, software development, mobile development, big data projects, DevOps, and digital marketing, SEO, and other services as well. But those are not majority part. So the majority services that we deliver, I've already addressed them. So yeah, and the background about the company is if you want to know, so it is like we are I think around 20 members or something. So and the core members are around 8 to 10 members. So yeah, those are all working remote from India. Yes. Okay. So So do your you company have feels like is there competition because of AI? Like, do you feel like No, okay, so like in what aspect are you asking? So AI is something which I would say a person who's not using AI, someone like a person who's not using AI has to be fair, and I don't think so that we are already using the APIs, I mean AI stuff, in terms of tools. If you're saying so, we use ChatGPT, we use Jasper, we use other tools as well. I think Podcastle and other like whatever tools that are that are based out of AI, we are already using them. So there's nothing to fear about. डर उनको लगना चाहिए जो ये टूल नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं, सो वो पीछे रह जाएंगे. okay? So AI is So basically, something we to have help to and eliminate. learn them, sir, to leverage our हाँ work. मतलब सॉरी क्या. So basically, we have to learn this AI to leverage our work. राइट You राइट are trying to एग्जैक्टली. राइट, यू डोंट नीड टू फेयर अबाउट देम कि तुम्हारी जॉब चली जाएगी या कुछ. अगर तुम्हें वो टूल चलाना है, टूल तो चलाएगा ना. वो टूल मशीन बैठ के तो चलाएगी नहीं, मशीन को मशीन नहीं चलाएगी ना, मशीन को इंसान ही चलाएगा. yeah, got it, sir. हम्म. Hari, you have question, you can ask your question. सर आपका फर्स्ट फ्रीलांसिंग में कितना पेड की थी कंपनी ने? सर फर्स्ट फ्रीलांसिंग प्रोजेक्ट में आपको कंपनी ने कितना पेड की थी? पेड की थी मतलब तुम पैसा पूछ रहे हो कितना मिला था मुझे? यस सर, यस सर. यार मुझे ध्यान नहीं है, ज्यादा नहीं था, कम ही था, 15-20 हज़ार के आसपास का होगा. One more thing I want to ask. So can I ask? सॉरी, पहला प्रोजेक्ट मेरा फ्री था भाई, पहले 2 प्रोजेक्ट्स मेरे फ्री थे. And I would love to mention that कि सर को जो because I have watched your podcast sir, so उसमें आपने ये बताया है कि you invested in like buying the subscriptions and all. हाँ So राइट. yeah, that was quite a good thing. A student, because you were student at that time, so yeah, that was a quite good thing a student can do, is like investing their money in what they want to do. So that was quite good thing. So one more thing I have to ask, sir. Mm-hmm. Sir, like when you were in lockdown, it was 2020. So how did you build connection outside of the college? Like I feel like inside the college, the students are not of my mindset. So how did you build a connection somewhere like the environment is of your only? That's a good question. So देखो क्या सीन था. आई एम प्रिटी श्योर यू गाइस हैव हर्ड अबाउट networking tools like LinkedIn. सबको पता होगा obviously, but apart from LinkedIn there are a lot of other tools as well which are basically meant for freelancing. So this I've already mentioned, but just to reiterate. So those are I'm just pointing out, you can write it down if you want. So LinkedIn, Twitter, Discord, Fiverr, Truelancer, Freelancer, Upwork, Indeed, Glassdoors, and co-founder, and I think there are a couple of more. I'm not able to recall it right now, but ये कुछ tools हैं. I think you guys can watch the recording. I think it's been recorded. So इन पे तुम अपनी अभी जाओ, प्रोफाइल बनाओ, ठीक है. सब्सक्रिप्शन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है एट फर्स्ट. जब आए सामने से तभी री इन्वेस्ट करना, आई वुड से, जो मैंने किया था.
सो उसमें अभी अभी जाके प्रोफाइल बनाओ अपनी अपनी, एंड जो भी सब फिल करो उसमें, आप पूरी 100% करो, छोड़ना मत कोई भी चीज़, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रोफाइल फिल्ड होगी उतना ज़्यादा दूसरे लोगों को जो तुम्हारी प्रोफाइल देखेंगे वो ट्रस्ट आएगा। सो इसमें बेसिकली तुम्हारे प्रोजेक्ट्स आएंगे, तुम्हारी नेटवर्किंग बढ़ेगी, एंड तुम्हारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा बातचीत करने में। सो फॉर एग्जांपल, इफ लाइक आई वाज नॉट वेल वर्स्ड इन आई वाज वेल वर्स्ड इन इंग्लिश, यू कैन से रिटन, आई मीन I could have I could write English paragraphs and essays properly, but I was not able to speak English properly at that point of time. So eventually what happened is like I attended regular, scrum meetings, daily meetings with my team, with my clients, and most of the clients were like based out of US, Australia, France, and some of them were Indians also. But again, usually it's a practice in corporate to talk in English. So eventually it improves your English, it improves the confidence, and how you speak Hindi, right? एक फ्लो में बोलते हैं अपन हिंदी बिना सोचे. So eventually that's how what it happens with English as well at some point of time. So yeah, did I answer your question? Oh, Sir, you were talking about networking, right? यही क्वेश्चन मैंने आंसर किया तुम्हारा क्वेश्चन, या कुछ और पूछना चाहते हो? sir, question है. हम्म. Sir, like even I'm planning for masters abroad, like after 4 years of college. So sir, I wanted to know what all did you include in the CV which like good for the recruiters. ओके, अगेन अ गुड क्वेश्चन. सो जस्ट टू रिटरेट, तुम्हारी वॉइस थोड़ी ख़राब थी, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ क्वेश्चन. मुझे Yeah, ठीक है, like, हाँ, बताना यही पूछा तुमने कि नहीं. तो तुम पूछ रहे हो कि तुम 4 साल के बाद मास्टर्स प्लान कर रहे हो, सो तुम पूछना चाह रहे हो कि उसमें तुम्हें क्या क्या चीज़ों की नीड होगी. लास्ट में तुमने रिक्रूटर बोला, हाँ सो आई सही. डोंट नो रिक्रूटर क्यों बोला. तो सीवी में क्या क्या इंक्लूड करना चाहिए? सीवी में, अच्छा, ओके. सो तुम यूनिवर्सिटी एक्सेप्टेंस की बात कर रहे हो ना, बेसिकली मास्टर्स में जब हम अप्लाई हाँ करते हैं हाँ यूनिवर्सिटीज़ yes, की. yes. ओके, ओके. हाँ सर. सो देखो, ये बहुत लंबी प्रोसेस होती है. ये डिपेंड करेगा तुम कौन से साल में और कौन से मंथ में जा रहे हो. तो यूजुअली यहाँ पे 3 इंटेक्स होते हैं: स्प्रिंग, फॉल एंड समर. ठीक है, स्प्रिंग और फॉल सबसे कॉमन इंटेक्स हैं, समर में बहुत कम लोग आते हैं. सो जब तुम मान लो अगर फॉल में जाना चाहते हो तो तुम्हें एक फॉल पहले तैयारी करनी पड़ेगी. फॉर एग्जांपल, अगर तुम्हें जाना है, जैसे मैं यहाँ पे आया फॉल 2023 है ना, ये कौन सा है, हाँ 3, तो मैंने तैयारी करी थी 2022 से. फॉल 2022 इज़ लाइक अगस्त, और स्प्रिंग इज़ जनवरी, Okay. जस्ट इन केस इफ एनीवन डोंट नो. सो जनवरी में स्टार्ट होता है, इसमें अगस्त में स्टार्ट होता है. मैं अगस्त वाले बैच में आया, सो मैंने पिछले ही साल अगस्त में तैयारी स्टार्ट करी थी. सो तैयारी के लिए तुम्हें सबसे पहली बात तो 3 चीज़ें लगेंगी: तुम्हारे टेस्ट स्कोर्स, तुम्हारे LOR SOPs, और आई थिंक अगर तुम चाहो तो हायर कर सकते हो कोई ऑर्गेनाइजेशन, या बहुत सारी हैं आजकल तो इंडिया में जो ये सब काम कराती हैं. बट मैं रेकमेंड करूँगा कि मैंने कर ली थी, क्योंकि मुझे नहीं पता था, मुझे बताने वाला इस चीज़ में लिटरली कोई नहीं था कि क्या क्या करना है. तो मेरे उसमें थोड़े पैसे चले गए, मतलब थोड़े नहीं, काफ़ी पैसे ले लेते हैं वो लोग. सो बट अगर तुम्हें पता है एग्जैक्टली क्या करना है, तो आजकल तो बहुत चैट जीपीटी अवेलेबल है, बहुत ऑनलाइन टूल्स इतने AI आ गए हैं, तुम सब अपने SOP LOR सब बना सकते हो खुद ही. हाँ, जेनेरिक नहीं, जेनेरिक बनाओगे तो एक्सेप्ट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे प्लेगरिज्म चेक बहुत खतरनाक होता है, तो तुम्हारी प्रोफाइल वैसे ही रिजेक्ट हो जाएगी अगर तुमने हाँ हाँ सब हाँ. कुछ ही ऑटोमेट कर दिया तो. ठीक है, तो तुम्हें करना क्या है, बेसिकली सबसे पहले तुम्हें GRE IELTS की तैयारी करनी है. आई थिंक उसमें डिपेंड करेगा. मैंने GRE की तैयारी या IELTS की तैयारी नहीं करी थी, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था साथ में, तो मैं बस दे के आ गया था. क्योंकि मेरा मैथ, अच्छा, तुम सब वैसे तो सब इंजीनियर हैं, सबका ही मैथ बैकग्राउंड होगा. सो मेरा थोड़ा सा मैथ्स ठीक था, तो मेरे GRE में ठीक ठाक स्कोर आ गया था. तो और आइल्स में इंग्लिश वगैरह भी ठीक थी, तो आ गया था. बट तैयार जिनका नहीं है तो वो तैयार, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत इजी पेपर आता है GRE आइल्स का. वो तुम 1 महीने की तैयारी में आई थिंक GRE हो जाएगा, एंड 15 दिन की तैयारी में आइल्स हो जाएगा. सो वो तुम दो, आई थिंक अगर तुम अगस्त में स्टार्ट कर रहे हो तो अगस्त पूरा GRE की प्रेप करो, या जिस भी तुम्हें स्टार्ट करना है, पहले आइल्स देना तो आइल्स दो, उसकी तैयारी करो. और आई थिंक अक्टूबर तक तुम्हारे सारे एग्जाम्स हो जाने चाहिए. ठीक है, GRE और आइल्स दोनों. ये थोड़ी प्रोसेस बहुत कॉस्टली पड़ती है, तो मैं रेकमेंड करूँगा कि तुम पहले सेविंग्स कर लो थोड़ी सी, उसके बाद आओ यहाँ पे, वरना तुम्हें लोन उठाना पड़ेगा, विच इज़ हेक्टिक, क्योंकि अभी US का मार्केट बहुत ख़राब चल रहा है. सो जॉब मिल नहीं रही है लोगों को, तो वो लोन अपना रीपे नहीं, कर अभी नहीं लाइक पाते 4 हैं, साल है तो मेरे. इवेंचुअली उन्हें घर भेज दिया जाता है कुछ टाइम के बाद, अगर उनका जॉब नहीं लगती है तो. 90 दिन का टाइम पीरियड होता है कुछ, तो उसमें फिर वापस अपने घर जाना पड़ता है. सो पैसे चले जाते हैं लोग के यहाँ पे, और फिर लोन होता है सर पे, इंडिया की जॉब से चुका नहीं सकते. सो वो बहुत सारे यहाँ पे चैलेंजेस हैं.
सो वो माइंड में रख के चलना कि सेविंग्स हो तुम्हारे पास, और पेरेंट्स से ले रहे हो तो पेरेंट्स से इनहेरिट कर रहे हो, खुद कर रहे हो तो बेटर कहूँगा मैं उस चीज़ को। तो वर्क एक्स लेके आओ तो बेटर है, और वर्क एक्स लेके आओगे तो एक्सेप्टेंस भी यूनिवर्सिटीज़ में ज़्यादा बेटर मिलती है यहाँ पे इंडिया के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे वर्क एक्स का बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस है। अगर तुम फ्रेशर हो, वर्क एक्स हो, तो वर्क एक्स वाले को ज़्यादा एक्सपीरियंस मिलेगा एनी डे। एंड सेकेंड थिंग इज, जब तुमने एग्जाम दिए देन उसके बाद तुम्हें अपना फोकस करना है LOR और SOPs पे। LOR में तुम्हारे लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जाएंगे फैकल्टी की तरफ से, विच इज़ एनी विच कैन बी लाइक एनीथिंग, जो भी तुमने किया है फैकल्टी को बताओ कि मुझे LOR चाहिए, मेरे ये माइलस्टोन थे, फैकल्टी को या तो लिख के दे दो या जो भी है कि आई हैव अचीव दीज थिंग्स। फिर फैकल्टी अगर उसे वेरीफाई करेगी एंड देन वो ग्रीन चाहिए देगी, तो फिर तुम अपना जैसे भी तुम प्रोसेस करना चाहो खुद लिख के दो या जो भी है, यूजली अब खुद ही लिख के देने लग गए हैं बच्चे क्योंकि कंसल्टेंसी हायर करते हैं तो। बट द यूजुअल प्रोसेस इज लाइक वो लिखेंगे हमारे जो प्रोफेसर्स हैं, और वो तुम्हें देंगे तुम्हारा हिसाब से ही जो तुमने अचीव किया होगा। सो दो लगते हैं आई गेस, दो या तीन, एंड देन SOP तुम अपना खुद लिखते हो। अब जो खुद ये सब चीज़ तुम चैट जीपीटी कर सकते हो, बट जस्ट टू इम्प्रूव द ग्रामर एंड लैंग्वेज स्टफ, जो तुम उसमें अंदर कंटेंट डालोगे वो तुम्हारा खुद का ओरिजिनल होना चाहिए। सो देन अब मैं आता हूँ SOP पे, जो तुम्हारा शायद मेन क्वेश्चन आंसर करेगा। SOP में तुम्हें अपनी प्रोफाइल के बारे में सब लिखना है, जो भी तुमने किया है आज तक, जो भी क्लब में पार्टिसिपेट ली, और वो तुम्हारे जो भी तुम प्रोग्राम चूज कर रहे हो। फॉर एग्जांपल अगर तुम बिजनेस एनालिटिक्स, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जो भी प्रोग्राम तुम यहाँ पे मास्टर्स के लिए चूज कर रहे हो, उससे तुम्हारी प्रोफाइल अलाइन होनी चाहिए। जो उससे अलाइन नहीं हो रहा है वो मत लिखो, वरना क्योंकि इतना टाइम बहुत प्रोफाइल्स आती हैं, इतना पढ़ने का टाइम होता नहीं है यूजुअली लोगों के पास, वो तुम्हारी प्रोफाइल एलिमिनेट कर देंगे उन्हें नहीं सही लगी तो, इवन इफ यू आर अ टॉपर और समथिंग। सो यहाँ पे बहुत इक्वल वेटेज होता है GRE आइल्स एंड SOP LOR। सो अगर किसी का GRE में कम भी रह गया, आइल्स में कम भी रह गया, सो वो SOP या LOR के दम पे एडमिशन ले सकता है। तो ये चीज़ है। अब मान लो तुमने SOP LOR लिखा, SOP में तुम लिखोगे अपने बारे में, अपनी प्रोफाइल के बारे में शॉर्ट समरी लिखोगे, तुम्हारे अचीवमेंट्स, तुम्हारे प्रोजेक्ट्स, तुमने कहाँ वर्क एक्स मतलब तुम्हारा जॉब एक्सपीरियंस क्या है, वहाँ पे तुमने क्या अचीव किया, तुम्हारे एक्स्ट्रा करिकुलर क्या हैं। और ये सब अलाइनमेंट होगा जो भी तुम कोर्स ले रहे होगे, जो वही वही चीज़ें डालना जो कोर्स से रिलेट कर रही हो। एक आध दो पॉइंट ऐसे डाल सकते हो अपनी हॉबी वगैरह जो तुम्हें पसंद है, एंड देन आई थिंक एक पेज का होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और नीचे थोड़ा सा तुम्हें यूनिवर्सिटी के बारे में लिखना पड़ता है, पर्सनलाइज मैसेज कि तुम इस यूनिवर्सिटी में क्यों जाना चाहते हो, ये यूनिवर्सिटी तुम्हें क्यों एक्सेप्ट करे। और बेसिकली उसमें हम किसी प्रोफेसर या स्पेसिफिक उसका मेंशन करते हैं यूनिवर्सिटी के, और उनके बारे में स्टडी करके लिखते हैं। सो दैट इज SOP। एंड देन लास्टली क्या होता है, एक स्कॉलर और रिपोर्ट जाती है। अच्छा, ये सब करने के बाद जब तुम सबमिट करते हो, उसमें साथ में एक स्कॉलर रिपोर्ट जाती है, दैट इज योर GPA। सो अगर तुम्हारा GPA, अब MITS में जैसे अब प्राइवेट कॉलेजेस में तो ये GPA आ जाता है, और बाहर की यूनिवर्सिटीज़ को इतना नहीं पता होता क्या प्राइवेट है इंडिया में, क्या गवर्नमेंट है वो। अब IIT है तो थोड़ा उनको समझ में आता है कि अच्छा IIT अच्छा कॉलेज है ये वो, बट आई डोंट थिंक सो MITS एग्जैक्टली सबको पता होगा। बहुत एलुमनाइज हैं वैसे यहाँ पे MITS के, सो बट इतना नहीं है कि सबको पता ही हो कि MITS कोई कॉलेज है इंडिया में। सो GPA अगर तुम किसी प्राइवेट से हो तो तुम्हें मिल भी जाता है, बट MITS में थोड़ा दिक्कत है GPA का, क्योंकि आई थिंक उतना नहीं मिलता है। सो यूजली अगर तुम 8 के ऊपर भी रखते हो अपना GPA, आई थिंक 8 के ऊपर तो मेंटेनेबल है। आई थिंक 9 के ऊपर मेंटेन करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, जैसे मेरा तो नहीं था 9 के ऊपर, मेरा 8 था। तो 9 के ऊपर में, बट अगर 8 भी है तुम्हारा तो आई थिंक दैट मेक्स इट 3.4 और 3.5 समथिंग आउट ऑफ 4। यहाँ पे 4 की GPA स्केल है। तो अगर तुम्हारा 3.2 के ऊपर है, सो यू आर गुड टू गो, और 3.5 के ऊपर है तो बेस्ट ही है। 3.5 के ऊपर आई थिंक तब आएगा जब तुम्हारा 8.8 या 9 के करीब होगा GPA, तो 3.5 के तुम ऊपर रहोगे। सो ये चीज़ है। सो GPA अगर तुम्हें बाहर जाना है तो GPA अच्छा मेंटेन करो, प्रोफाइल अच्छी होनी चाहिए, LORs प्रॉपर इंटैक्ट होने चाहिए, टीचर्स के साथ मतलब जिससे भी तुम ले रहे हो उनसे रिलेशन अच्छा होना चाहिए। एंड व्हाट एल्स इज रिमेनिंग, हाँ GRE आइल्स तो कॉमन है, वो तुम्हारा स्कोर भी 5 साल के लिए वैलिड होता है, तुम कभी भी दे के आ जाओ 5 साल तक उसे यूज़ करो। और आइल्स आई थिंक 2 साल तक वैलिड होता है मोटा मोटा। और फिर इसके बाद वीज़ा वीज़ा प्रोसेस हो, और उसके लिए मैं कहूँगा कंसल्टेंसी हायर करो वीज़ा प्रोसेस के लिए। सो हाँ, वो तो तुम्हारी हेल्प करेगी, बट हाँ नहीं भी कर सकते तो एक बार तुम कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा अगली बार के लिए, क्योंकि यूजली फिर अपनी फैमिली वैमिली का भी वीज़ा करते हैं हम, तो वो एक प्रोसेस पता होनी चाहिए। तो ऐसे कर सकते हो, ये सब करने में तुम्हारा ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1 साल निकल जाएगा, और अगस्त में फिर तुम्हारा टर्म स्टार्ट होता है। और यूजुअली तुम फिर यूनिवर्सिटीज़ खुद ही टारगेट करके एक्सप्लोर करके कर सकते हो कि तुम्हारा कहाँ इंटरेस्ट आ रहा है। उनकी एप्लीकेशन ऑनलाइन होती हैं सबकी, फ़ी वेवर्स मिलते हैं उसमें, तो उसका ट्रैक रखना। उनके न्यूज़लेटर्स में फ़ी वेवर्स आते हैं, क्योंकि यहाँ पे फ़ीस आई थिंक $100 होती है हर यूनिवर्सिटी में अप्लाई करने की सिर्फ, एंड स्कोर भेजने के भी अलग पैसे होते हैं। सो पैसा इस प्रोसेस में बहुत खर्च हो जाएगा। अगर तुम 10 यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करते हो, सबके LOR, सब में GRE स्कोर भेजोगे, आइल स्कोर भेजोगे, एंड अप्लाई करोगे,
आई थिंक मोर और लेस, और फिर उसमें फीस भी भरनी पड़ती है आई थिंक, एक्सेप्ट कुछ कंफर्मेशन फीस होती है लास्ट में जब एक्सेप्टेंस आ जाता है। सो आई थिंक 3 से 4 लाख रुपए खर्चा होता है इन जनरल। सो इसलिए मैं कहूँगा सेविंग्स लेके जाना। तो ये मैं एक्चुअली मैंने पूरा ही क्वेश्चन एड्रेस कर दिया, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन मैंने ले लिए एक साथ। मैं Yes, sir. सर एक खुशी और पूछो। गोयल को हाँ, क्वेश्चन है, तो आई वुड आस्क कि खुशी अपना क्वेश्चन पूछ लो। Sir, in which year you started freelancing? 2020, March 2020, आफ्टर लॉकडाउन स्टार्टेड। सर आपका कौन सा ईयर था तब अच्छा, मेरा कॉलेज कॉलेज का में? ईयर या थर्ड था। थर्ड भी नहीं था क्योंकि हमारे एग्जाम्स डिले हो गए थे। सो टाइमलाइन के हिसाब से थर्ड था, बट हमारे एग्जाम हुए ही नहीं थे। कोविड जब पूरा खत्म हो गया, आई थिंक हमारे जो अगस्त सितंबर में एग्जाम हुए सेकेंड ईयर के, जब कोविड का लॉकडाउन आ गया था। सो मैं टेक्निकली थर्ड सेकेंड ईयर में ही था उस समय, मार्च अप्रैल मई जून वाले पीरियड में। बट तुम लोग के टाइम पे आई थिंक अभी मतलब इन जनरली एग्जाम अप्रैल में हो जाते हैं सेकेंड ईयर के। सो वो कह सकते हो मिड था, सेकेंड ईयर खत्म था ऑलमोस्ट, थर्ड ईयर स्टार्ट था। एंड सर किक स्टार्ट क्या मिला था कि ना फ्रीलांसिंग करना है? फ्रीलांसिंग करना है मतलब? मतलब सर मतलब एक मोटिव होता है ना कि फ्रीलांसिंग करने के लिए। अच्छा, यार मैं खाली बैठा था तो मैं सोचा कुछ करता हूँ। एंड सर फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करने के लिए क्लब्स के थ्रू करना है, मतलब आपने एक्सप्लोर बोला, उसको कैसे करना चाहिए? एक्सप्लोर, देखो अपना फर्स्ट ईयर में जरूरी नहीं है कि किसी आईटी क्लब में घुस जाओ या फिर किसी, तुम्हारे माइक से नॉइस आ रही है थोड़ी। हम्म फर्स्ट ईयर में एक्सप्लोर करने से मेरा मतलब ये नहीं कि तुम सीधे उनसे उन्हीं क्लब्स में जा रहे हो जिसमें आईटी से रिलेटेड से काम होता है या वैसा। अगर तुम्हारा जनरल इंटरेस्ट है तो जाओ, बट मैं ये रिकमेंड करूँगा कि उस क्लब में जाओ जिसमें तुम जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, सो दैट कैन बी योर हॉबी एज वेल। और अगर तुम्हारी हॉबी प्रोफेशन सेम ही है तो फिर तुम उस टाइप का क्लब चूज कर सकते हो। सो फर्स्ट ईयर में क्योंकि हमें वो स्किल डेवलप करनी है, दैट इज अ सेकेंडरी पार्ट। फर्स्ट थिंग इज हमें अपना इंटरेक्शन, नेटवर्किंग, कॉन्फिडेंस और पर्सनालिटी डेवलप करनी है। सो उसमें बस ये है कि जब तुम अपने इंटरेस्टेड क्लब में जाओगे तो तुम्हें सामने से मन तुम्हारे को वो नहीं रहेगा कि यार अब फिर जाना है क्लब की मीटिंग में या फिर ये करना है, क्योंकि वो तुम बाय इंटरेस्ट चूज किया तुमने, वो जो भी उस क्लब का टॉपिक है या जो भी उसका स्ट्रीम है क्लब का। फॉर एग्जांपल फिल्म मेकिंग है, आईटी से है, रेसिंग से है, स्पोर्ट्स इवेंट से है। सो तुम जाओगे, नेटवर्किंग होगी, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, तो सेकंड थर्ड ईयर में इवेंचुअली वो ऐसे हेल्प करेगा तुम्हें कि तुम प्रेजेंटेबल रहोगे किसी भी चीज़ के लिए और तुम झिझकोगे नहीं कोई भी क्वेश्चन करने में, कोई भी इंटरव्यू देने में या कुछ भी बातचीत भी करने में। सो वो तुम्हारी पर्सनैलिटी थोड़ी सी एनहेंस कर देगा। सो ये कहने का मतलब था मेरा एक्सप्लोर करने से। एंड इंटरेस्ट एक्सप्लोर तुम साइड बाय साइड कर सकते हो कि तुम्हें जाना किस स्ट्रीम में, वो सेकेंडरी चीज़ है, वो तुम खुद से करोगे घर पे बैठ के या जैसे भी ऑनलाइन। अब तो ऑनलाइन ही करते हैं सब। तो ये है। मयूरी, आप अपना मयूरी, क्वेश्चन प्लीज। हाँ सर, आई एम अ फाइनल ईयर स्टूडेंट और सर अभी एमआईटीएस में कुछ कंपनीज नहीं आ रही है, तो सर अभी क्या करना चाहिए, मतलब किस स्किल की तरफ जाए या क्या करे कि जिससे खुद को अपस्किल और कर सके। अच्छा, अभी तुम्हारा प्लेसमेंट, क्या तुमने क्या बोला, कंपनी नहीं आ रही है कि आने वाली है, क्या बोला? नहीं यार, मतलब नहीं, मतलब सर इस टाइम तक तो आ जानी चाहिए ना कंपनीज, पर ज्यादा कुछ कंपनीज आ नहीं रही है और आ भी रही है तो बहुत कम पैकेज वाली आ रही है और नॉन टेक्निकल जॉब दे रही है आईटी स्टूडेंट्स को भी। हाँ, ये है तो ये अब जैसे तुम्हें मान लो टेक में जाना है, ठीक है, तो तुम्हारे लिए ये क्वेश्चनेबल चीज़ है कि यार नॉन टेक क्यों दे रहे हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं ऑलरेडी एमआईटीएस में जिनको नॉन टेक ही चाहिए था। सो ये गुड पार्ट है एक्चुअली, कंपनीज तो आ रही हैं एटलीस्ट। एंड सेकंड चीज़ ये कि थोड़ा मार्केट अभी ख़राब ही चल रहा है। सो एक्सपेक्टेशंस बहुत हाई मत रखना। आई डोंट नो, मेरे टाइम पे ठीक था प्लेसमेंट, उसके बाद से जो मेरे को रिपोर्ट आई है जूनियर्स की लगातार वो यही है कि नहीं हो रही सर हायरिंग, बहुत कम पैकेज दे रहे हैं वो। तो अभी एक्चुअली यहाँ क्योंकि
अभी यूएस का भी मार्केट बहुत ख़राब है, और मेनली हमारी जो इकोनॉमी है सर्विस बेस्ड वाली कंपनीज की, जैसे एक्सेंचर, इन्फोसिस, ये सब, विप्रो विप्रो, इनके मोस्टली प्रोजेक्ट्स यूएस के ही हैं। सो जब यहीं पे ही इनके पास प्रोजेक्ट्स की कमी है, सो वही वो एस्केलेट करते हैं इंडिया में। सो इसलिए थोड़ा सा मार्केट ख़राब चल रहा है, तो वो हायरिंग फ्रीज कर रखी है, या लेते नहीं है, कम पैकेज पे लेते हैं। सो मार्केट थोड़ा सा ख़राब है अभी, अनफॉर्चुनेटली। आई थिंक 1.5-2 साल लगेगा उसको सही होने में, देन मेनली कंपनीज आएंगी। बट अगर फिर भी ऐसा है तो वैसे तो लगना चाहिए, यूजुअली लेती ऐसे एक्सेंचर लेती है, पिछले साल भी हमारे टाइम पे भी लिए थे, उसके बाद भी लिए 40-50 बच्चे तो। सो ऑन कैंपस के लिए मैं रेकमेंड करूँगा, अगर तुम्हें करनी है तैयारी, सो ऊप्स अपना अच्छा रखो, डीबीएमएस अच्छा रखो, एंड डीएसए इंटरमीडिएट या बेसिक लेवल तक भी चल जाएगा, बहुत एडवांस की ज़रूरत नहीं है। और ये सब, हाँ, ये डीबीएमएस और वो ऊप्स भी बहुत एडवांस लेवल की ज़रूरत नहीं है, ये सब इंटरमीडिएट है। एंड अपनी वोकैब अच्छी रखो, ठीक है। वोकैब एज इन बातचीत करने में तुम अटको ना, मतलब थोड़ा बहुत अटक भी रहो चलेगा, बट एकदम भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और हिंदी में नहीं बात करनी है, और जब भी तुम इंटरव्यू दे रहे हो प्रेजेंटेबल रहो, फॉर्मल कपड़े पहन के, हमेशा कैमरा ऑन रखो, नॉइज़ी बैकग्राउंड में मत बैठो। ये सब चीज़ें फॉलो करोगे तो ये एक सेकेंडरी इम्प्रेशन भी होता है इंटरव्यूअर, या उस पर जो भी तुम्हारा ले रहा होगा इंटरव्यू। भले ही तुम इंटरव्यू में ख़राब कर दो टेक्निकल, कुछ क्वेश्चंस का आंसर ना दे पाओ वो, बट अगर तुम प्रेजेंटेबल हो, सो वो एक बार वो कंसिडर करेगा। एंड प्लस अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन नहीं भी आ रहा है, सो तुम उसको ऐसा मत बोलो कि डायरेक्टली कि ये मुझे नहीं आता। तुम ऐसा बोल सकते हो कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट, बट प्रॉब्ली आई गेट बैक टू यू ऑन दिस वन। सो उसको ऐसा लगेगा कि ओके, दिस ये लड़की है, ये लड़का एक्चुअली डिलीजेंटली कोशिश कर रहा है कि हाँ, मतलब एफर्ट मार रहा है। सो ये एटीट्यूड कैरी फॉरवर्ड करोगे, ऑन कैंपस में जॉब आराम से लग जानी चाहिए, इज़ व्हाट आई से। और ऑफ कैंपस जाना है, सो यही सब चीज़ें यहाँ समझो इंटरमीडिएट से ही बहुत ऊपर, क्योंकि ऑफ कैंपस में तो कंपटीशन ग्लोबली होगा बहुत। क्योंकि जैसे यहाँ ऑन कैंपस में तो कितने बच्चे होंगे एमआईटी में, 1000-2000। ऑफ कैंपस तुम यही सेम स्किल्स अगर लेके ज्वाइन करोगी कंपनी, सो जो भी मैंने स्किल्स बोली हैं, इसमें तुम इंटरमीडिएट की जगह एक्सपर्ट लेवल या हार्ड, वो समझ लो। क्योंकि ऑन कैंपस में स्पेसिफिकली तुम्हारी स्किल्स ऐसे नहीं जज करते कि तुमने वो एड ऑन, एडिशनल एड ऑन है, बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि तुम्हें उसी के बेसिस पे ही जॉब मिल जाएगी। ये यूजुअली ऑफ कैंपस में होता है, जो तुम स्किल्स एनहांसमेंट की बात कर रही हो ना, ये ऑन कैंपस में तुमसे बहुत कम पूछेंगे कि तुम्हें ये स्टैक फ्रेमवर्क पे काम करना आता है कि नहीं आता, क्योंकि वो उनको पता है, वो एक्सपेक्टेड है कि तुम्हें नहीं आता। सो वो तुम्हें उसमें इवेंचुअली ट्रेन करेंगे, जब तुम कंपनी में जाओगे तो तुम्हें पता पड़ेगा कि जो भी स्किल्स वगैरह होती हैं वो साइड चली जाती हैं। जो जो वो तुम्हें प्रोजेक्ट देंगे, वो तुम्हें ट्रेनिंग कराएंगे, तुम्हें उस पर काम करना है, तो वो तुम्हारा करियर डिसाइड करते हैं, जो कि बहुत गलत लगता है मुझे। बट हाँ, हमारा करियर कॉर्पोरेट डिसाइड करता है एक बार हम उसमें घुस गए तो। सर्विस बेस में तो यही होता है, एटलीस्ट प्रोडक्ट बेस में थोड़ा बहुत हमारे पास वाइबिलिटी है। ओके मयूरी। हाँ। एंड सर, एक न्यूजेन कंपनी के बारे में पूछना था, उसके बारे में आपको कुछ आइडिया है क्या, वो कैसी है? क्योंकि अभी करेंटली वही आई है कॉलेज में। अभी आई थिंक कौन सा महीना चल रहा है ये, सितंबर है ना। अभी तक एलटीआई नहीं आई तुम लोगों के में। नहीं सर, इतना तो- एलटीआई अब तक आ जानी चाहिए थी, फर्स्ट कंपनी तो हमेशा एलटीआई होती है, बट हाँ ओके, एनीवेज आई डोंट नो क्यों नहीं आई। बट हाँ, तुम लोग उसके लिए ऑफ कैंपस जाके अप्लाई कर सकते हो, उसकी ओपनिंग्स खुल चुकी हैं, जस्ट FYI। 5.5 पे हायर करती है शायद वो, फॉर एसोसिएट कंसल्टेंट या एसोसिएट डेवलपर। सो और कॉलेज में आती है आई थिंक 4.5 और 6.5 पे। सो ऑफ कैंपस जाओगे तो 5.5 मिल जाएगा। इतना थोड़ा सा ऑफ कैंपस थोड़ा सा मुश्किल पड़ता है, बट इतना भी नहीं, अगर तुम कोडिंग वोडिंग राउंड सब क्रैक कर लेते हो उसका, तो इवेंचुअली आई गेस यू गाइस वुड बी एबल टू मेक इट। ओके, कमिंग टू अ क्वेश्चन, न्यूजेन। न्यूजेन मेरे कुछ दोस्त काम कर रहे हैं उसमें। बस उसमें एक दिक्कत थी, जो कि मुझे नहीं पता सच है कि नहीं, बट आई केम टू नो फ्रॉम वन ऑफ माई फ्रेंड्स दैट न्यूजेन ऑफर्ड something package, I don't know, I think 6.5 or something. And when he actually got on the desk as in जब वो जॉब ज्वाइन करने बैठा, so he was offered 4.5। एंड दिस हैपेंड विद अ लॉट ऑफ कंपनीज, बिकॉज एकदम से रिसेशन आया, एकदम से नहीं, बट ये न्यूज़ एकदम से फैली, तो बहुत लोगों की सैलरीज कट डाउन हो गई थी। सो ये हुआ था। बट हाँ, न्यूजन में ऐसा ले ऑफ वगैरह तो नहीं सुना है मैंने अभी फ़िलहाल के लिए, मेरे सारे दोस्त ऑलरेडी काम कर रहे हैं पिछले 2 सालों से। सो इट्स अ गुड कंपनी, इफ़ यू गाइस वांट टू गो फॉर इट, एटलीस्ट तुम्हें कुछ तो मिलेगा, कुछ नहीं से कुछ सही ना,
तो अप्लाई तो करो ही। Yes, sir. नेक्स्ट विशाल कुमार। ये क्वेश्चन तो हैंड डाउन कर सकते हो अपना। Yes, sir. Sir, I am audible. यू आर ऑडिबल विशाल। सर मेरा क्वेश्चन ये था सर, मतलब अपने को ऐसा क्या बेसिक तैयार करें कि जिसमें कोई भी फील्ड हो उसमें अपन अच्छे तरीके से स्कोर या मतलब अचीव कर पाए कुछ भी से, मतलब बेसिक रिक्वायरमेंट सर, ये पूछना चाह रहा हूँ। किस चीज़ की बेसिक रिक्वायरमेंट? सर जैसे कि मैं सीएस में सेकंड ईयर में हूँ सर, तो हम्म। जैसे कि डेवलपमेंट में है, फुल स्टैक में सर, इन सब में। अच्छा, तो तुम किस ऑफ कैंपस के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, ऑन कैंपस कैसे, या खुद का प्रोजेक्ट करने कैसे, क्या किस उससे पूछ रहे हो, क्या सबके अलग अलग होते हैं? क्योंकि सर ऑफ कैंपस के तरीके से पूछ रहा हूँ सर। ऑफ कैंपस के तरीके से तो हाँ देखो, ऑफ कैंपस पर रोड मैप में ना तुम्हारा जो भी टेक स्टैक है, फॉर एग्जांपल हम मान के चलते हैं, अभी मैं रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, मर्न स्टैक, ठीक है, मेरा वही था क्योंकि सो मर्न स्टैक में फुल स्टैक कर, मर्न स्टैक इज़ अ फुल स्टैक। सो तुम उसमें स्टार्ट करोगे, और ऑब्वियसली तुम हर चीज़ में परफेक्ट नहीं हो सकते। तो मैं मेनली रिएक्ट में मैं मेनली रिएक्ट में था, एंड नोड और डीबीएमएस में थोड़ा कम ही करता था, एंड एक्सप्रेस तो सर्वर साइड है, तो वो जितना यूट्यूब से देख के या स्टैक ओवरफ्लो से देख के हो जाता था, बट मुझे नॉलेज थी उसकी। तो तुम्हें एक 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 स्टैक में अच्छे से परफेक्ट होना है, सेकंड दूसरे स्टैक में, सेकेंडरी स्टैक में तुम इंटरमीडिएट हो सकते हो, एंड बाकी टू में तुम ऐसा कर सकते हो कि बैक एंड फोर्थ मूव ऑन कर सकते हो, कि कोई साथ में आ गया तो कर दिया उसने, या तुमने ऑनलाइन नेट पे देख के कर लिया। इतना तुम्हें समझ में आ गया कि अच्छा, अगर नेट पे ये सॉल्यूशन देखा है तुमने, तो उसे सही से इंप्लीमेंट कर पाओ, सिंटेक्स वगैरह देखे, क्योंकि एक बार अगर तुम सिर्फ डॉक्यूमेंट, तुम्हें कोडिंग आती है तो तुम बाकी लैंग्वेजेस भी आराम से क्रैक कर लोगे एक बार डॉक्यूमेंटेशन पढ़ के। सो वो स्टैक तुम इस तरीके से तैयार रखने की एटलीस्ट दो पे तुम्हारा कमांड अच्छा रहे, फुल स्टैक की बात कर रहा हूँ मैं, दो पे तुम्हारा कमांड अच्छा रहे, फ्रंट एंड जो भी तुम चुन सकते हो वो तुम्हारे ऊपर है। एंड देन उसके बाद जो चीज़ें हैं तुम्हें ध्यान में रखनी है, ये कि तुम्हारा डीएसए अच्छा होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए, एंड ऊप्स तुम्हारा स्ट्रांग होना चाहिए तुम्हारा, और क्या बोलते हैं, और जो भी तुम्हारा स्टैक है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर तुम डीबीएमएस में इतने नहीं हो, बट तुम्हारा एटलीस्ट बेसिक एसक्यूएल, नो एसक्यूएल या मोंगो डीबी जिस पे भी तुम कर रहे हो, तुम्हें बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, स्कीमा वीमा क्या होता है, फॉरेन की, प्राइमरी की, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सो ये पता होना चाहिए, जो भी जिसमें तुम ये शो नहीं कर रहे हो कि तुम परफेक्ट नहीं हो, तो अगर तुम डीबीएमएस में और एक्सप्रेस में शो, सर्वर में शो नहीं कर रहे हो कि तुम नहीं हो, तो तुम्हें उसका बेसिक इतना आइडिया होना चाहिए। बाकी दो में तुम्हें फ्रंट एंड का अच्छे से रिडक्स आगा वगैरह, ये सब इतने लेवल तक तुम्हें पता होना चाहिए, और नोड में भी बैक एंड में तुम एपीआई वगैरह इंटीग्रेट कर लो सही ढंग से, इतना इतना पता होगा अगर तुम्हें ऑफ कैंपस जाने में, दैट इज़ मोर देन इनफ। एंड इसके साथ तुम्हें डीएसए पे ध्यान तो रखना ही है। सो बाइनरी सर्च वगैरह, सारी एल्गोरिदम्स, हैंडलिंग ट्रीज वगैरह, हैंडलिंग लिस्ट, ये सब में तुम परफेक्ट होने चाहिए। ये ऑफ कैंपस की स्पेसिफिकली बात करूँ कि ऑफ कैंपस में अभी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गई, क्योंकि अवेयरनेस एकदम से, और क्योंकि अभी सभी यही ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन इतनी प्रेजेंस बढ़ गई है, सबको अवेयरनेस है अब कि क्या क्या करना है। सो कंपटीशन इवेंचुअली बहुत इंक्रीज कर रहा है। सो इन इन चीज़ों में तुम्हें ध्यान रखना है। प्लस अगेन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेजेंटेशन स्किल्स मैटर्स। सो वो कैब, इंग्लिश, कमांड ओवर इंग्लिश, और तुम्हारा ड्रेसिंग सेंस, बात करने का तरीका, और इंटरनेट कनेक्शन अच्छा रखना, वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। तुम्हारी वीडियो कट रही है, वॉइस कट रही है, कि सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा क्या बोल रहे हो, उससे ही बहुत फ़र्क पड़ता है। ये थोड़ा ईज़ रखोगे इंटरव्यूअर के लिए तो बेस्ट चीज़ है। और थोड़ा डिसिप्लिन रहना, कि अगर मीटिंग है तो टाइम पे ज्वाइन करो, ये सब चीज़ें। इतना हो तो ऑफ कैंपस जॉब आराम से तुम क्रैक कर लोगे। बाकी जो नॉर्मल राउंड्स होते हैं वो तुम्हें पता ही होगा, जैसे कंपाइलर होता है, 3-4 राउंड होंगे, उस पर तुम्हें रिटन टाइप करके टेस्ट केसेस पास कराने हैं। आई थिंक एक या दो होंगे। उसके बाद तीसरे चौथे राउंड में तुम्हारा हो सकता है एचआर या टेक्निकल इंटरव्यू हो जाए, एंड देन यूड बी एलिजिबल फॉर द जॉब। एंड प्रॉब्ली किसी ने ये क्वेश्चन नहीं पूछा कि जॉब के लिए कैसे अप्लाई करना है, सो मैं बताता हूँ, लास्ट में एड्रेस करूँगा ये। सो So actually मेरा भी एक question है. Yes sir. So sir, right now I'm currently like doing DSA. तो मैं ऐसा कोशिश करती हूँ कि मैं दिन के 2 या 3 क्वेश्चन कर दूँ, बट जब मैं पढ़ रही थी तो मेरे को वो समझ में आता है, बट व्हेन आई गो एंड लाइक ऐसे प्लेटफॉर्म पे जाके व्हेन आई गो स्टार्ट सॉल्विंग क्वेश्चन, तो वो हो नहीं पाता है। एंड उस टाइम पे ऐसा बहुत ओवरवेलमिंग फील होता है कि यू आर डूइंग एवरीथिंग, बट लाइक स्टिल यू आर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चंस। तो उस टाइम पे क्या करना चाहिए?
तो मतलब तुम ये कह रही हो स्पेसिफिकली तुम्हें पता है, तुम पढ़ लेती हो डीएसए वगैरह, तुम्हें सिंटेक्स पता है जिस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में तुम कोड कर रही हो, बट जब तुम रिटर्न टाइप दे के टेस्ट केस पास करवाना चाहती हो तो वो तुम्हारे या तो पार्शियली पास होते हैं या नहीं होते, या एरर आती है कोड में, ये क्वेश्चन है। यस सर, मेरा टेस्ट केस मोस्टली पास नहीं हो पाते, पूरे नहीं हो पाते। सो जब तुम कोड लिख पा रही हो, सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। कोड लिखना इज नॉट मेन स्टफ, एल्गोरिदम एंड द एनालिटिकल थिंग्स इज द मेन थिंग। सो फॉर एग्जांपल तुम्हें क्वेश्चन की पर्सपेक्टिव से सोचना होगा कि और कितनी चीज़ें इसमें हम ला सकते हैं। सो जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक सिनेरियो बताता हूँ। हमारी ऐप है, ठीक है, इसका ये प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग गया ये अलाइन करने में कि हम ये काले वाले कंपाइलर पे जो कोड करते हैं इसका एक्चुअल में मतलब क्या इंडस्ट्री में हम क्यों कर रहे हैं ये बेफालतू क्वेश्चन सॉल्व। सो जो इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है वो ये है कि जब तुम कोई भी क्वेश्चन तुम्हें देते हैं रैंडम, उसके टेस्ट केस पास कराते हैं, सो दैट इज बेसिकली क्या कि वो सारे सिनेरियोज उसमें कवर कर रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबल तुम एरर्स छोड़ सकते हो इस कोड में। अब फॉर एग्जांपल प्रैक्टिकली हम देखें तो एक ऐप है, ऐप में हमने बहुत सारे, मान लो एक कोई फॉर्म है, ठीक है, फॉर्म नहीं कोई फंक्शनैलिटी लेते हैं, एक्सवाइजेड कोई भी फंक्शनैलिटी है रैंडम। अब तुमने वो डेवलपर ने वो फंक्शनैलिटी कोड कर दी जो उसे जिस फ्लो में उसे बताया गया कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा, ए बी फिर ऐसे 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 जाएगा। अब उसको ये नहीं बताया कि कोई बंदा बी से अगर डी जाना चाहे या तो क्या हो जाएगा कोड के अंदर, उसने वो फंक्शनैलिटी डिज़ाइन ही नहीं करी। तो जैसे ही वो कोई भी ऐसा बटन क्लिक करेगा जो फंक्शनैलिटी से बाहर है, तो वो कोड एरर दे देगा या एप्लीकेशन क्रैश कर जाएगी या जो भी। तो ये होता है बग। ये डेवलपर जानबूझ के नहीं छोड़ता, ये डेवलपर के दिमाग में ही नहीं होता कि ये भी मैंने टेस्ट केस कवर नहीं किया है कि कहीं किसी ने इस पर क्लिक कर दिया तो कोई ये वाले रास्ते पे चला गया तो। सो ये तुम लोगों को ट्रेन करने के लिए होता है बेसिकली टेस्ट केसेस, कि तुम कितने सिनेरियो सोच पा रहे हो वाइल कोडिंग। सो ये तुम्हारी एरर जो, क्या बोल सकते हैं उसे, जो एरर छोड़ने के चांसेस हैं किसी भी कोड में वो प्रिवेंट करता है। सो इसलिए टेस्ट केसेस होते हैं यूजली। तो मल्टी जैसे कभी कभी किसी क्वेश्चन में ऐसा भी होता है कि ऑप्शनल आंसर है, ज़ीरो है किसी का, कुछ टेस्ट केसेस तो ज़ीरो निकल के आ रहा है। सो टेस्ट केस इसलिए होते हैं कि तुम 50 तरीके सोच पाओ, और कोई टेस्ट केस मान लो 9 पास हो गए, 10वां पास नहीं हो रहा है, तो वही टेस्ट केस होगा जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है कि आ, एक सेकेंड कौन, ओके, कोई नॉइस आ रही है शायद मुझे, ओके। सो ये वही टेस्ट केस होगा यूजुअली जो तुम्हारे दिमाग में नहीं आ रहा है। सो बस इसी को ट्रेन करने के लिए वो लोग करते हैं। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना होगा, मोर एंड मोर क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, और ये तुम्हें खुद के दिमाग में ही बनाना पड़ेगा कि ये मान लो, ये तुम्हें मान लो कोई भी लैडर की प्रॉब्लम दी है, तो वो उसके पास 3-4 तरीके हैं जैसे जैसे वो जा रहा है, फिर या फिर कोई नंबर सीक्वेंस सीरीज का क्वेश्चन है कि यहाँ क्या आ सकता है या वो। तो तुम्हें पहले ही सोचने हैं वो केसेस कि इसके प्रोबेबल आंसर जब तुम मैथमेटिकली सॉल्व करोगे तो क्या हो सकते हैं, देन उसके बाद तुम्हें उसे कोड में इंप्लीमेंट करना है, उसका सॉल्यूशन बनाना है। पहले तो तुम खुद ही अपने दिमाग में सॉल्व करोगी उसे। सो जहाँ प्रॉब्लम आ रही है वो एनालिटिकल साइड है, कोडिंग साइड नहीं है। सो एनालिटिकल साइड तुम प्रैक्टिस कर सकती हो, एलआर और क्वांट के क्वेश्चंस करोगी तो स्पेसिफिकली इसके जो तुम्हें मैथमेटिक्स के प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होते हैं मेनली, तो आई थिंक हो सकता है तुम्हें वहाँ पे इम्प्रूवमेंट दिखे। क्योंकि इसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ये है कि उनको तुम्हें तुम्हारा ब्रॉडर माइंडसेट चाहिए कि तुम कोई कोड में एरर ना छोड़ दो आगे जाके जब तुम कोड करो। सो दैट इज द प्राइमरी रीजन कि व्हाई वी हैव 10 to 15 टेस्ट केसेस। यस सर। मुझे भी क्वेश्चन है और सर आयुष, कंटिन्यू आयुष। प्लीज सर, मैं ये पूछ रही थी कि मैं डेवलपमेंट नहीं कर रही हूँ अभी, आई एम स्टिकिंग टू माई DSS थिंग। तो हाउ मच टाइम डज लाइक डेवलपमेंट टेक एक्चुअली, कितने टाइम में कर सकते, बिकॉज ऑब्वियसली आई डू दैट, लेकिन मैं अभी नहीं कर रही हूँ वो चीज़। ओके, सो तुम एक तुम्हारा, अगर सिर्फ इसलिए नहीं कि किसी ने किया है डेवलपमेंट या मैंने किया है या कोई भी और तुम्हें दिख रहा है जो अच्छा कर रहा है ठीक ठाक, उसने डेवलपमेंट किया है इसलिए तुम डेवलपमेंट करिए। अगर तुम्हारा जेन्युइन इंटरेस्ट है तो हाँ, तुम डीएसए जैसे मेरा था, तो मैंने बहुत बहुत ही आई थिंक स्पॉन्टेनियसली स्विच कर दिया था जब मुझे समझ में आया। सो मैंने आई थिंक इतना सेकेंड ईयर में किया था डीएसए वगैरह और ये हैकर रैंक लीड कोड पे कोडिंग वगैरह, देन आई मूव टू वेब डेवलपमेंट आफ्टर 8 months और सो। तो ये मेरा टाइमलाइन ये था बेसिकली। बट हाँ, उसके पहले मैंने अपना डीएसए किया था इम्प्रूव, क्योंकि डीएसए एनीवेज एट द एंड ऑफ द डे काम आने ही वाला है। सो वो ऐसा नहीं है कि तुम वेब डेवलपमेंट में घुसे तुमने डीएसए छोड़ दिया, चलेगा सर, थोड़ा टाइम चलेगा।
ठीक है, और थैंक एक यू। चीज़ और एड्रेस करनी है मुझे, जो चैट पे क्वेश्चंस आ रहे हैं वो मैं साथ की साथ नहीं देख पाऊंगा, तो या तो कोई उन्हें रीड कर दे लास्ट में जब भी हम पार्किंग लॉट। हाँ सर, वो लास्ट में रीड कर देंगे। हम्म अभी के लिए पार्किंग लॉट में डालते हैं क्वेश्चंस। पार्किंग लॉट एज इन मैं मीटिंग के लास्ट में एड्रेस कर दूंगा सारे। So we have few engaging questions too, but उसके पहले लोगों के genuine questions हैं, तो वो आप पहले Yeah. बता दो। थोड़ा रिपीटेबल क्वेश्चंस अवॉइड करो क्योंकि अपने पास टाइम कम है, ठीक है। Yes. मेरे को एक क्वेश्चन है, मतलब ये एक बहुत कॉमन क्वेश्चन है कि जैसे आपने मतलब दोनों किया है कि स्टार्टअप और आपने 1 ईयर का पैकेज भी क्रैक किया है, तो क्या करना चाहिए मतलब स्टार्टअप या प्लेसमेंट के लिए, बिकॉज दोनों के एडवांटेज और डिसएडवांटेज रहते हैं, तो आप क्या प्रेफर करेंगे अगर आपसे आपका हम्म व्यू पॉइंट जानना चाहें तो? ये बहुत कॉन्टेक्चुअल क्वेश्चन है, मैं अपने पर्सपेक्टिव से बता सकता हूँ ये। तो मेरे को अब ऐसा नहीं कि मुझे जॉब मिल गई इसलिए मैं ये कह रहा हूँ, बट मुझे जेन्युइनली कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है जॉब में। सो जैसा कि मैं आई थिंक मीटिंग के शुरू में बताया था, मैं अपने घर वापस जाके अपनी कंपनी कंटिन्यू करना चाहूँगा यहाँ पे अपना बेस सेटअप करके। सो मेरा जनरल पर्सपेक्टिव ये है क्योंकि मैं 9 to 5 काम नहीं कर सकता। मैं मेरे से तुम बाद में करा लो 5 के बाद, मैं कर दूंगा, बट मैं ऐसा 9 to 5 स्ट्रेट बैठ के काम नहीं कर सकता। मुझे थोड़ा इंडिपेंडेंस और फ्रीडम चाहिए अपनी अपने लिए, और अपना वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए, तो वो मुझे अपने खुद की कंपनी में मिलता था। सो मैं वो प्रेफर करता हूँ। और मेरी यूजली इसलिए जो मेरी जॉब प्रोफाइल्स भी रही हैं वो ऐसी ही वाली रही हैं कि मुझे पूरे टाइम लैपटॉप पर नहीं बैठना। मेरे नीचे टीम्स हैं, मैं उन्हें मैनेज करता हूँ। सो मेरा काम कभी कभी मैं लैपटॉप पे ना भी रहूँ तो भी चल जाता है। सो मैं यूजुअली वैसा वर्क एनवायरनमेंट प्रेफर करता हूँ। कूल सर, अब और क्वेश्चन ले सकते हैं? जलज। हैंडल वाले कितने हैं? हमारे पास 3 हैं, इसको एड्रेस करते हैं फिर तुम लोग हाँ क्या फिर। एक्टिविटी नेक्स्ट कर रहे हो। हाँ सर। हाँ, विशाल का है नेक्स्ट। का हो गया सर शायद, जलज। ओके, तो हैंड डाउन कर दो तो पता नहीं चलता क्योंकि So एक common question आ रहा है कि how to apply for off campus और like how to apply for good internship and good job. ओके, ये एड्रेस करता हूँ मैं अभी। अ, ठीक है। और दूसरी बात, जिसका क्वेश्चन हो चुका है, जैसे जेन्युइनली कोई क्वेश्चन नहीं है, वो अपना हैंड डाउन कर सकता है क्योंकि दूसरों के मिस हो रहे हैं फिर। ओके, नेक्स्ट विनीत और जलज हैं। पहले मैं ये एड्रेस कर दूं जो तुमने बताया। सो हाउ टू अप्लाई फॉर, एक सेकंड कहाँ गया वो, हाउ टू अप्लाई फॉर गुड इंटर्नशिप एंड गुड जॉब। ओके। देखो, सबसे पहले तो गुड इंटर्नशिप है गुड जॉब के लिए अप्लाई करने के लिए, अगर तुम्हारा ये क्वेश्चन है, एक सेकंड, कि ब्रांच कौन सी होनी चाहिए या ब्रांच वैसे कुछ होता है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तुम किसी भी ब्रांच से हो, तुम किसी भी डोमेन से हो, ठीक है, तुम किसी भी फील्ड में जा सकते हो अनटिल अनलेस तुम्हें उसकी स्किल्स आनी चाहिए। अगर तुम सिविल में हो तो तुम्हें अगर कंप्यूटर साइंस वाली स्किल्स आती है, प्रोग्रामिंग आती है, तो तुम बेशक जा सकते हो, केमिकल में हो जा सकते हो। मेरे बहुत दोस्त गए हैं पिछले साल, मेरे साल से 2022 वाले बैच के, सब सिविल मैकेनिकल केमिकल के एक्सेंचर और आईआईटी कंपनी में प्लेस हैं और ठीक ठाक कर रहे हैं। सो फर्स्ट थिंग दैट, एंड सेकंड इज, क्योंकि ये मैंने इसलिए एड्रेस किया क्योंकि बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि ईसी से जा सकते हैं या सीएस के लिए ही क्या करना रहेगा, तो ये एक कंटेक्चुअल क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, कि तुम किसी भी ब्रांच से जा सकते हो अनटिल अनलेस कि तुम्हें उसका नॉलेज होना चाहिए जिसमें तुम जा रहे हो, ठीक है। अब गुड इंटर्नशिप के लिए अप्लाई कैसे करना है, तो देखो 3 4 तरीके हैं। पहली बात तो पहला तरीका बहुत जेनेरिक वाला है। तुम जाओ किसी भी कंपनी की साइट पे, जिस जो भी कंपनी तुम टारगेट करना चाहते हो, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि तुम सीधा माइक्रोसॉफ्ट पे चलेगा या जेबी मॉर्गन चेज पे चलेगा और तुम फ्रेशर हो और नॉर्मली प्रोफाइल है और वो तुम्हें सेलेक्ट कर लेंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता, ठीक है। तुम्हें या तुम्हारी जो भी तुम्हारी, तुम अगर अप्लाई कर रहे हो चीज़ें, तो तुम्हारी वो स्किल्स भी बहुत एक्सेप्शनल होनी चाहिए, ठीक है। तो और इसमें ना, इसमें कुछ कभी कभी ऐसा हो जाता है कि कुछ कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, तो यूजुअली एक लड़कियों के लिए बहुत सही आती है, उसको अमेजोन वाओ करके उनका प्रोग्राम है, गर्ल्स के लिए होता है उससे स्पेसिफिकली। उसमें कंपैरेटिवली आसान होता है जॉब सीख करना, क्योंकि उसमें कंपटीशन थोड़ा सा कम रहता है क्योंकि ओनली गर्ल्स हैं और बहुत कम लोगों को उस प्रोग्राम के बारे में पता होता है। तो यूजुअली अमेजोन वाओ से आप घुस सकते हो अमेजोन में नॉर्मल पोजीशंस के लिए जो सबके लिए अवेलेबल होती हैं। आई थिंक बॉयज़ के लिए कुछ नहीं है, सैड पार्ट, बट कोई बात नहीं। सो
बट जितनी भी अपने पास मीटिंग में यहाँ पे गर्ल्स हैं उनको मैं बस एड्रेस करना चाह रहा था कि अगर ये कोई तुम्हें कहीं दिखे अमेजोन वाओ का, सो प्लीज़ डू अप्लाई फॉर दैट। नेक्स्ट इज एक तो हाँ, तो ये फर्स्ट तरीका ये था कि तुम साइट पे गए तो एक करियर करके टैब होती है, ठीक है, करियर करके टैब आएगी, उसमें तुम क्लिक करोगे तो बस बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ जितनी भी उस कंपनी में ओपन होंगी वो सारी दिख जाएंगी, ठीक है। अब अप्लाई करने से पहले तुम्हारे पास सीवी तुम्हारी रेडी होनी चाहिए। सीवी में बहुत ही कॉमन फॉर्मेट भी चल जाएगा, ऐसा तुम्हें सजाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक मिथ है कि सीवी सजी होनी चाहिए या कुछ भी, क्योंकि सारी सीवीज जो ऐसे तुम अप्लाई करते हो साइट पे जाके, इनको कोई भी ह्यूमन नहीं पढ़ता, इन्हें मशीन पढ़ती है। तो तुम जितनी कॉम्प्लेक्स अपनी सीवी बनाओगे, वो एटीएस में, एटीएस करके एक टूल होता है जो सब यूजली सब इस्तेमाल करते हैं, वो फिल्टर करता है सीवीज को, उसे पॉइंट्स नहीं मिले, क्योंकि वो कैसे फिल्टर करता है, वो सीवी में टेबल्स के थ्रू और वर्ड्स के थ्रू पकड़ता है। तो अब तुमने अपनी सीवी में ऐसी कर दी कि पहली बात तो वो सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है उसका टेक्स्ट, तुमने फोटो डाल दी अपनी, स्क्रीनशॉट खींच के डाल दिया, तो तुम्हारी वैसे ही रिजेक्ट होनी है, क्योंकि वो वर्ड नहीं पकड़ पाएगा एटीएस, उसको पीडीएफ फॉर्मेट या वर्ड फॉर्मेट ही देना पड़ता है तभी वो पकड़ पाता है। तो और उसके ऊपर से तुम्हारा फॉर्मेटिंग थोड़ा अजीब सा है, कुछ क्रिएटिव कर दिया तुमने, अब वो एटीएस को समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्या बना दिया है, वो तुम्हारे वर्ड ही ट्रैक नहीं कर पाया जॉब के, क्योंकि वो स्पेसिफिक वर्ड टारगेट्स करता है कि इस सीवी में ये वर्ड्स हैं कि नहीं इस जॉब के लिए, अगर हैं तो वो उसको अंदर मूव करेगा, नहीं तो फिल्टर आउट कर देगा। सो मेरा रिकमेंडेशन ये, बहुत ही प्लेन सीवी, वाइट वाइट बैकग्राउंड पे बनाओ तुम, नाम डालो, वो सब डालो, बहुत प्लेन फॉर्मेट्स में मिल जाएंगे, मैं अपनी सीवी शेयर कर दूंगा नहीं तो, बहुत बहुत नॉर्मल फॉर्मेट है। सो और उसमें तुम्हें बहुत ही कंसाइज चीज़ें डालनी है, एक पेज में होनी चाहिए। और आई थिंक हाँ, एम आई टी एस की सीवी तुम लोगों को देंगे ना टेम्पलेट, दैट वर्क्स, मैंने वो सीवी इस्तेमाल करी हुई है, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड सीवी फॉर्मेट, सो वो चलेगा। वन पेज सीवी होनी चाहिए, ठीक है। और ये सिर्फ फ्रेशर्स के लिए नहीं है, अगर तुम एक्सपीरियंस भी हो जाओ कभी आगे जाके, सो अब तुम्हें बहुत कंपनी स्विच मार ली है तो ऑब्वियसली 2 पेज तक जा सकता है, बट 2 पेज से ऊपर नहीं जाना चाहिए, कंसाइज करो 1 पेज तक, ठीक है। देन जब एटीएस के बाद फिल्टर होकर तुम्हारी सीवी पहुंचती है आगे किसी एक्चुअल ह्यूमन पे, देन उसमें वो सारी चीज़ें पढ़ेगा और उसी के बेसिस पे तुम्हारा आगे इंटरव्यू लेगा अगर तुम शॉर्टलिस्ट होते हो तो। आ, ठीक है, उसमें तो इसलिए सबसे पहली बात, सीवी में तुम्हें कुछ झूठ नहीं लिखना, सब सच सच लिखना है, क्योंकि बाद में जाके अगर तुम्हारा झूठ पकड़ा किसी ने तो तुम्हें वहीं पे निकाल देंगे वो लोग। सो सब सच लिखना है, एटीएस में फिल्टर होके आगे पहुंची ह्यूमन ने करी है वहां तक, तो मतलब तुम में कुछ तो बात होगी। सो इसीलिए जो तुमने किया है एग्जैक्टली बस वही वही लिखो, थोड़ा बहुत लिख सकते हो चाहो तो, कि अगर एक्सपीरियंस बस उसमें, लेकिन नीचे मेंशन ज़रूर करना कि लिटिल, मतलब जो भी उसके पर्सपेक्टिव में कि इतना ही काम किया है या किसी प्रोजेक्ट में इतना इतना था, ऐसा मत लिख देना कि सब मैंने किया है या ऐसा कुछ, तो झूठ नहीं लिखना है। देन उसके बाद इतना हो जाएगा तो फिर ऑलरेडी पूरा प्रोसेस कंप्लीट हो जाता है ये करियर वाले का। एंड यूजुअली सारी वेबसाइट्स पे यही फॉलो होता है, एमएनसीज पे तो एक्सेंचर, माइक्रोसॉफ्ट, अमेजोन, एलटीआई, एंड जितनी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज हैं, न्यूजन, एंड सबका सबका एक आध करियर पेज होता है मिशन की वेबसाइट पर। सो फर्स्ट तरीका ये है, ये बहुत जेनेरिक तरीका है, ये एटीएस के थ्रू फिल्टर हो गया जाता है मशीन्स के थ्रू। देन सेकंड तरीका ये है, जो हमारे दूसरे वेंडर्स होते हैं, वेंडर्स कह सकते हो, वेबसाइट्स होती हैं जो, फॉर एग्जांपल लिंक्डइन, ग्लासडोर्स, इंडीड, और आई थिंक हाई काउंसलर, और भी बहुत सारी हैं, अब तो बहुत आ गई हैं। इन सब पे अपनी आईडीज़ बनाओ, ठीक है, ये जॉब्स के लिए हैं, प्रोजेक्ट्स के लिए नहीं है, ये जॉब्स के लिए हैं। सो इन सब पे अपनी आईडीज़ तुम बनाओ, एंड प्रोफाइल पूरी कंप्लीट रखो, सीवी वेल मेंटेन रखो, जो जो भी तुमने किया है। सीवी के लिए एक अलग से मैं कुछ शेयर कर दूंगा कि क्या क्या कंटेंट होना चाहिए एक सीवी में, क्योंकि वो भी बहुत मैटर करता है। तो और हर कंपनी की सीवी अलग होती है, बट तुम लोग फ्रेशर हो तो तुम्हारा तो सेम ही चलेगा, एक्सपीरियंस नहीं हो तो तुम्हारे तो एक ही सीवी चलेगी बस। सो सीवी अपनी अपडेट करके रखो, प्रोफाइल अपडेट करके रखो, और जो भी जॉब्स आएँ, डिस्क्रिप्शंस आएँ, जेडीज, उनको पढ़ो सही ढंग से, उसके इंटरव्यू की स्पेसिफिकली तैयारी करो, क्योंकि ऑन कैंपस में तो ये है कि उनको पता है कि तुम्हें कुछ नहीं आता, बट ऑफ कैंपस में उनकी एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि तुम्हें आता है। सो जो भी उनका जेडी होगा, जैसे अगर वो मेंशन कर रहे हैं कि तुम्हें जेसॉन, जावास्क्रिप्ट, नोड, इन सब में प्रोफिशिएंट होना है, तो कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर तुम्हारा इंटरव्यू जब भी स्केड्यूल हो रहा है, या तुमने अप्लाई कर दिया, तुम्हारी प्रोफाइल शॉर्टलिस्ट हो गई है, लकीली तुमने डाला हुआ है अपनी स्किल्स या कुछ भी, तो तुम्हारे पास उसकी तैयारी करने के लिए टाइम होगा, एक आध डेढ़ महीना, या जितना भी, 2 हफ्ते भी हुए, 3 हफ्ते भी हुए, तो उसमें तैयारी तुम्हें उसमें डेटाबेस का करना है, नो एसक्यूएल पूछा हुआ है, एसक्यूएल पूछा हुआ है पूरा। सो तुम कर सकते हो उसको पढ़ के और इंटरव्यू दे सकते हो। सो सेकंड चीज़ ये है कि जब भी जॉब्स के डिस्क्रिप्शन आ रहे हैं, सही ढंग से पढ़ो, तुम्हारी प्रोफाइल से अलाइन हो रहा है, अप्लाई करो, सीवी वीवी डाल के सब,
और ये सबके लिए है, ये इंडीड पे भी सेम होता है, ग्लास डोर्स पे भी सेम होता है, लिंक्डइन पे भी सेम होता है। और लिंक्डइन पे एक आसान तरीका और है, तुम पहले से अपनी सीवी उसमें अपलोड करके रख सकते हो। तो एक इजी अप्लाई करके आता है टर्म उसमें। एक तो आता है प्रॉपर अप्लाई करने का, जिसमें तुम्हें बहुत कुछ भरना पड़ता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। एक इजी अप्लाई बना दिया लिंक्डइन ने। उसमें क्या है, तुम पहले से अपनी सीवी डाल के उनको दे दो लिंक्डइन को, और अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल कर दो कि हर बार अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं किसी किसी कंपनीज के लिए, तो लिंक्डइन तुम्हें हमेशा ऑटो फिल करके देगा वो। सो वो ईजी अप्लाई होता है, तुमने बस उस पर वन टैप क्लिक किया, 2-3 क्वेश्चन वो पूछेगा और डन, तुम अप्लाई हो गए जॉब के लिए। फिर लिंक्डइन के थ्रू ही तुम्हें कॉल आता है। एंड उसमें लिंक्डइन में फ़ायदा ये है कि सबसे ज़्यादा फ़ायदा इन सब में से लिंक्डइन में ही है, क्योंकि तुम्हें नीचे रिक्रूटर का नाम दिखता है। सो अब अगर तुम्हारे पास लिंक्डइन प्रीमियम है, ठीक है, तो तुम उस रिक्रूटर को डायरेक्टली भी अप्रोच कर सकते हो, एक पर्सनलाइज मैसेज लिख के कि हाय दिस इज दिस हाय दिस इज समर्थ एंड आई हैव अप्लाइड फॉर दिस जॉब विच यू आर हायरिंग। आई फील लाइक आई एम द बेस्ट फिट फॉर दिस सिंस आई हैव दीज स्किल्स सेट्स विद इन माई प्रोफाइल, स्टफ लाइक दैट। या कुछ भी लिख सकते हो, मतलब एक बेटर इंप्रेशन पड़ता है, कवर लेटर टाइप का हो जाता है वो एक, कि उसको लगेगा रिक्रूटर को कि हाँ ये बंदा या बंदी जेन्युइनली इंटरेस्टेड है। सो वो एक एडिट कभी कभी पॉइंट हो जाता है। एंड यूजुअली तो यही है। सो लिंक्डइन पे भी सेम ही लिस्ट आती है, जॉब्स आती हैं, देखो तुम्हारे अलाइन हो रहा है, अप्लाई करो, सब सच सच भरो पूरा। और ऐसा ज़रूरी हो सकता है कि तुमने एसक्यूएल पे काम किया हो, बट एट दैट पॉइंट तुम्हें नहीं पता हो उतना डिटेल में, बट तुमने एट सम पॉइंट काम किया है 1 साल पहले, 1.5 साल पहले, या जब भी कॉलेज में, तो तुम वो स्किल डाल सकते हो। और जब इंटरव्यू हो, तो अब तुम्हें आती है स्किल, तो सिर्फ इसीलिए ही तुम 2 या 3 हफ्ते में उसकी तैयारी कर पाओगे। अगर तुम्हें नहीं आती तो तुम एसडी नहीं बन सकते 1 या 4 दिन की तैयारी करके। डीएसए नहीं पढ़ सकते तुम 1 हफ्ते में, डीएसए के लिए चाहिए 5-6 महीने अच्छे तरीके से उसको ब्रश करने के लिए। तो अगर तुमने करी है एक टाइम पे, तभी तुम उसे 3 हफ्ते में रिवाइज कर सकते हो। तो इसीलिए जो रेज्यूमे में डालो या जिस भी जॉब के लिए अप्लाई करो, उसके जेडी में सब लिखा होता है, जेडी इज़ जॉब डिस्क्रिप्शन, उसके जेडी में सब लिखा होता है कि हम ये एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं। सो उन्हीं जॉब्स में अप्लाई करो। अगर तुम परफेक्ट फिट होगे किसी भी जॉब के लिए, तो मार्केट इतना भी ख़राब नहीं है कि तुम्हें ले ही ना। ऑफ कोर्स लेगा, बहुत हायरिंग हो रही है, मेरे नेटवर्क में बहुत हायरिंग हो रही है, मुझे मुझे दिख रहा है कि हो रही है हायरिंग। सो इट्स नॉट समथिंग लाइक दैट। ठीक है, ये सेम अप्लाई होगा इंटर्नशिप और जॉब के लिए, सेम होता है। मतलब जैसे इंटर्नशिप के लिए तुम अप्लाई करोगे, जैसे जॉब के लिए अप्लाई करोगे, वैसे ही सेम इंटर्नशिप के लिए अप्लाई करोगे, दोनों की सेम प्रोसेस है। Okay, sir. So Jalaj has raised his hand. I would request Jalaj question put हाँ, forward. क्वेश्चन एड्रेस कर लेता हूँ मैं। यस जलज। Sir, I am a first year student. So as you early said that you have to explore the lot of things in first year. So my question is that when we decided that we have to go in that particular domain and learn the main thing from that and master to become in particular domain. The problem is that how to gain a lot of things and learn that in a master way so we can helpful and we can sharp our skills in that particular way. So you can you suggest some things that where should we have to learn or think that particular thing? ओके, जस्ट टू रीइटरेट, तुम ये क्वेश्चन पूछ रहे हो कि इन व्हाट सेंस कैन वी डेवलप और मास्टर आवर स्किल्स सो दैट वी वी probably kind of get aligned with the job skills requirement that is being asked and upscale ourselves in a perfect manner. Is that what you're trying to ask? Yes, sir. ओके, सो देखो, ये चीज़ मैं बहुत स्पेसिफिकली प्रमोट करता हूँ फॉर फ्री एजुकेशन, फ्री रिसोर्सेज। तुम या फिर सस्ते। सो ऐसा नहीं कि तुम गए कोर्सेरा पे, तुमने ख़रीद लिया वो 7-8 हज़ार वाला, या तुम किसी वेबसाइट पे गए, तुमने 8-10 सारे कोर्स ख़रीद लिया, सर्टिफिकेशन कर लिया, और तुम उसको ब्रैक कर रहे हो लिंक्डइन पे। उसकी कोई वैल्यू नहीं होती ज़्यादा, क्योंकि वो कोई भी कर सकता है। ठीक है, तो मैं यूजुअली क्या रिकमेंड करता हूँ कि ठीक है, सर्टिफिकेशन करो तो अच्छी अच्छी वाली से करो, जैसे कोर्सेरा है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, अमेजोन है। ये जो सर्टिफिकेशन कराते हैं ना, इनकी एक्चुअल में वैल्यू होती है। तो अगर तुम कहीं भी नॉर्मल सर्टिफिकेशन जाके कर रहे हो, और भी एक साइड है डेटा कैंप, उसके भी बहुत अच्छे होते हैं। सो इनके अगर तुम सर्टिफिकेशंस करो, तो फिर भी एक चीज़ है कि हाँ ओके, किसी ने इसका किया है तो सही हो, कि इनके एग्जाम्स प्रॉक्टर्ड होते हैं, तो एक्चुअली जिन लोगों ने क्लियर किया होता है उनके पास उस चीज़ की नॉलेज होती है। बट बहुत सारे आजकल सर्टिफिकेशन ऐसे ही मिल जाते हैं। सो व्हाट आई वुड रेकमेंड कि अगर तुम इन वेबसाइट से पढ़ के अपने को अपस्केल कर रहे हो अपने आप को, और इनका प्रॉक्टर्ड एग्जाम एक्चुअली में क्रैक कर रहे हो, सो ऑब्वियसली तुम्हें वो स्किल आ रही है जो उन्होंने सिखाई है। सो वहाँ पे तुम ऑलरेडी अपस्केल हो रहे हो इन अ वे।
बट अगर तुम नहीं जा रहे हो पेड रिसोर्सेज में, विच आई वुड रेकमेंड कि मत जाओ पेड रिसोर्सेज में अभी, बाद में जब अपॉर्चुनिटी मिले तो जाना, क्योंकि अभी इतना पैसा डालने का मतलब है नहीं। सो फ्री रिसोर्सेज तुम टारगेट कर सकते हो यूडेमी। यूडेमी के बहुत सारे कोर्स, कुछ फ्री भी हैं, कुछ बहुत सस्ते हैं, 300 350 में मिलते हैं। और फिर भी नहीं तो मैंने तो जो किया था, आई थिंक मुझे टॉरेंट से मैंने डाउनलोड कर लिए थे, बहुत एक लंबी प्लेलिस्ट थी, उसमें मुझे बहुत सारे कोर्सेज मिले थे अच्छे अच्छे, और बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर्स के कोर्सेज मिलते हैं तुम्हें यूडेमी पे। तुम्हें सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा और तुम्हें ये भी नहीं समझ में आएगा जब तुमने कोर्स कंप्लीट कर लिया कि तुम्हें आया कि नहीं आया। बट अगर मतलब अगर तुम ऐसे जज करते हो अपने आप को कि मुझे समझ में, मतलब तुम अपने आप को सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पाते हो। बट ये है कि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टाइम अगर तुम डिलीजेंटली रोज जो भी वो क्वेश्चंस कराएगा उसको सिर्फ सर्टिफिकेशन के पर्सपेक्टिव से ना देखे कि ये इसका कोई सर्टिफिकेशन है, एग्जाम नहीं है, तो मैं क्यों प्रैक्टिस करूँ, मैं तो बस देख लेता हूँ एट अ ग्लांस। सो वो नहीं करते हुए अगर तुम एक्चुअली में सॉल्व करोगे सारी चीज़ें जो भी वीडियो में बताएगा, तो आई थिंक एट द एंड ऑफ द वीडियो तुम एक्चुअल में सीख जाओगे जो जो वो सिखाना चाह रहा है। और ऑब्वियसली तुम जो कोर्स चूज़ करोगे तो वो तुम अपने हिसाब से ही करोगे कि एडवांस कोर्स है, इंटरमीडिएट कोर्स है, या जो भी है उस हिसाब का। तो तुम पहले बेसिक से करोगे, फिर इंटरमीडिएट कोर्स चूज़ करोगे, उसका फिर एडवांस पे जाओगे। तो वो इवेंचुअली तुम्हें समझ में आ जाएगी कि ओके तुम इस चीज़ में अपस्किल हो चुके हो। एंड व्हाट प्लेटफॉर्म्स आई वुड रिकमेंड इज़ यूट्यूब। और यूट्यूब पे वो जो भी बता रहे हैं, सर्टिफिकेशन है चाहे नहीं है, तुम्हें खुद की अपस्केल करना है तो वो जो भी चीज़ें बोल रहे हैं प्रैक्टिस करने के लिए वो तुम्हें खुद सेल्फ डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा सॉल्व। सो वही एक इकलौता तरीका है जो मैं रिकमेंड करता हूँ। बाकी जो पेड तरीके हैं वो मैं कम रिकमेंड करता हूँ, वो मैं इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स को रिकमेंड करता हूँ क्योंकि वो एक्चुअली कमा रहे हैं तो वो उसमें री इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट हाँ, वो भी एक अच्छा तरीका है सर्टिफिकेशन का, बट ओनली फ्रॉम नोन साइट्स। सो ये सर आपके क्वेश्चन में एक ऐड ऑन करना चाहूँगा कि मतलब द सर्टिफिकेट डू रियली मैटर बिकॉज कॉलेज में बताया जाता है हमको कि इसके इतने क्रेडिट्स हैं, उसके इतने उसके ओके। क्रेडिट्स हैं, तो हाँ, एक ये मैटर करता है। हाँ बता रहा हूँ, एक सेकंड। मुझे कोई चैट पे अर्पित शायद है, वो बोले प्लीज़ सेंड योर नंबर सर। सो तुम मुझसे या तो इंस्टाग्राम पे कनेक्ट कर सकते हो, लिंक्डइन पे कनेक्ट कर सकते हो। नंबर मैं शेयर कर दूंगा चलो, बट सेम ही चीज़ है। मैं जब फ्री होता हूँ तो मैं अपना लिंक्डइन, इंस्टाग्राम या कोई भी ऐसा सोशल है अपना, मेनली यही दो हैं जहाँ मैं चेक कर लेता हूँ। व्हाट्सएप पे कुछ ऐसा मतलब नहीं, मतलब तुम वैसे भी मुझे कॉल कर नहीं पाओगे क्योंकि मेरे कॉल कर लोगे, बट मैं उठाऊंगा नहीं भले मेरी इंटरनेशनल रोमिंग ऑन है तो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा पैसे लगते हैं। तो ये सेम बात है, चाहे तुम कहीं भी कनेक्ट करो। या मैं शेयर कर दूंगा बट जाते जाते। ऑल राइट। सर मैं ग्रुप पर डाल दूंगा इंस्टाग्राम आईडी आपकी। हाँ, या मैं डाल देता हूँ इसके लिए। वैसे तुम इस पर भी कनेक्ट करो, मेरी हमेशा एक टैब में लिंक्डइन हमेशा खुला रहता है, तो मैंने अपना शेयर कर दिया है। एक सेकेंड। Yes, so even I want to tell everyone that LinkedIn पे सर सबको एड्रेस कर देते हैं, so you all can connect to him there and even you can question whatever you want. ओके। यस, कोई क्वेश्चन? मैं शायद भूल गया था कौन सा एड्रेस कर रहे थे हम। हाँ सर, वो Could मेरा you क्वेश्चन please था कि जैसे द सर्टिफिकेट टू रियली मैटर बिकॉज कॉलेज में हमको बताया जाता है कि इसके इतने क्रेडिट्स हैं, उतने क्रेडिट्स हैं, तो मैटर करते हैं वो। ओके ओके, देखो सीन ये है, तुम्हारा एक पर्सनल ट्रेनिंग या क्या था लास्ट का सब्जेक्ट, मैं भूल गया, लास्ट सेमेस्टर में आता है वो, ठीक है, जो जो लोग होंगे बता सर फाइनल। पीडी? तो जो लास्ट सेमेस्टर में होंगे उन्हें पता होगा वो वाला सब्जेक्ट क्या है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, तुमने जो भी मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर या जहाँ भी बाहर भी किए हो, तुमने कुछ भी कोर्स वोर्स किया हो या मॉक किया हो, मतलब मूक, सॉरी मूक, मूक कोर्सेज होते हैं, और ये नैप्टेल वाले भी इंक्लूड होते हैं उसमें। और बाकी तुमने जो अपनी क्लब की एक्टिविटीज़ में किया है उस सब के लिए सर्टिफिकेट्स लगते हैं। बट अगेन अगर तुम्हारी जुगाड़ तुगाड़ है अपने सीनियर्स वगैरह से, वो क्लब में है ऑलरेडी, तो जैसे मेरी तो थी, तो मैं क्लब में नहीं भी था, फिर भी मैंने उनको बोल दिया था कि भाई मेरे को वॉलंटरी सर्टिफिकेट एक आप अवेल अगर करवा सकते हो तो बेटर रहेगा। मैं जो भी होगा बदले में, अगर अभी कुछ करना है वैसा तो मैं कर कर सकता हूँ। बट उन्होंने नहीं लिया, उन्होंने बोला ठीक है, वी कैन गिव यू वॉलंटियर सर्टिफिकेट और सम स्टफ लाइक दैट। सो मेरा उसमें हो गया था। और बाकी ऑफ कैंपस में जो इंटर्नशिप वगैरह करी थी उसके सर्टिफिकेट्स मुझे मिले थे, सो दैट काउंटेड। बट जो तुम वैसे सर्टिफिकेट्स की बात कर रहे हो, अगर कॉलेज के बाहर कहाँ काम आएंगे, सो वो कुछ स्पेसिफिक साइट्स हैं जो मैंने अभी तुम्हें बताई कि कॉर्सेरा का मैटर करता है, काफ़ी उसकी वेटेज होती है। पीएमआई का मैटर करता है, पीएमआई इज़ फॉर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट, वो
वो बहुत महंगा कोर्स है और वो सिर्फ 2 साल के लिए वैलिड होता है। तुमने करना एग्ज़ाम निकालने के बाद फिर तुम्हें दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ता है 2 साल के बाद, ताकि वो रिन्यू कर सको तुम अपना सर्टिफिकेट। और ऐसे और भी बहुत सारे होते हैं। कॉर्पोरेट में स्पार्क का होता है एंड बहुत तरीके के होते हैं, उनकी गिनती नहीं है। सो एक्चुअली इन और जो उनके इशूअर होते हैं वैल्यू उनकी होती है। सो फॉर एग्जांपल अगर कोई कंपनी है, कंपनी ही विद इन ट्रेनिंग करा रही है तुम्हारी, जैसे एक्सेंचर, इन्फोसिस, विप्रो वगैरह, अमेजोन, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ये कंपनीज कराती हैं कोर्सेज। सो ये करा के तुम्हें दे रही हैं तो इनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। या कोई भी और कॉर्पोरेट जिसका मैं नाम शायद भूल नहीं ले पाया हूँ इस वाली लिस्ट में, जो जाना माना हो, इनके कोर्सेज़ की एक्चुअल में वैल्यू होती है क्योंकि इनकी क्रेडिबिलिटी होती है। ये सबको नहीं देते, जो एक्चुअल में कोर्स करके एग्ज़ाम निकालता है ये उसी को मिलते हैं। सो इनकी क्रेडिबिलिटी है। बट यूडेमी हो गया, और भी बहुत साइट्स हैं आजकल, तो बहुत आ गई हैं। कोर्सेरा पर भी कुछ कुछ फ्री वाले हैं जिसमें तुम बस कर दो, टिक 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 मार दो, तो मैं सर्टिफिकेट दे देंगे वो। ऐसा एक जेपी मॉर्गन का भी एक है, पता नहीं कुछ लोग करते हैं वो, मेरे बैच से बहुत लोगों ने किया था वो भी। बस उसमें टिक 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 मारना होता है और तुम्हें वो सर्टिफिकेट मिल जाता है, और वो जेपी मॉर्गन इशू करती है। सो उसकी मतलब अब वो डिपेंड करता है। तो अगर वही सर्टिफिकेट तुम कर रहे हो, सोच रहे हो जेपी मॉर्गन ने इशू कर दिया, अरे वाह, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है। तो वो सर्टिफिकेट टू सर्टिफिकेट भी डिपेंड करता है और उसकी क्रेडिबिलिटी भी डिपेंड करता है। सो वो चीज़ है, अगर तुम अच्छा सर्टिफिकेशन कर रहे हो, सो दैट विल मैटर व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर एनी कंपनी, इट विल मैटर, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन आदित्य आदिराज सिंह, सॉरी। मेरा हेलो, आदिराज, हेलो सर, एम आई ऑडिबल? हाँ हाँ, यू आर ऑडिबल। सर मैं पूछ रहा था कि आप यूट्यूब पे लाइक कौन से चैनल्स को व्यू करते थे? यूट्यूब पे लाइक कौन से चैनल का रिकमेंड करोगे आप? तुम लाइक यूट्यूब पे फॉर पूछ रहे हो? पाइथन एंड डेटा? तुम यूट्यूब पे पूछ रहे हो ना, मैं सुन नहीं पाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ। देखो, एक तो लब बाबर है, कोड विद हैरी है, और टेलेस्को लर्निंग है। टेलेस्को लर्निंग मैंने बहुत फॉलो किया है पाइथन के लिए और पाइटॉर्च वगैरह के लिए। एंड टू और भी बहुत सारे चैनल्स थे या तुम, मैं तो एक्चुअली टॉपिक वाइज भी करता था। तो ये तो वैसे थे कि किसी की प्लेलिस्ट मैं स्पेसिफिकली कर रहा हूँ। जैसे मैंने HTML CSS और जावास्क्रिप्ट की प्लेलिस्ट जब करी थी, तो वो कोड विद हैरी ही करी थी मैंने पूरी उसकी। आई थिंक 113 वीडियोस कुछ हैं। तो वो वैसा है कि आप जिसको पसंद करते हो, यूट्यूबर को पढ़ाने का तरीका पसंद है, आप उसकी पूरी प्लेलिस्ट देख लोगे। ये एक चीज़ है। बट तुम किसी टॉपिक वाइज सर्च करो तो ज़रूरी नहीं है कि मेरा फेवरेट यूट्यूबर कोड विद हैरी है तो मैं उसी की क्वेरी देखूं कि मुझे अगर पाइथन में लिंक लिस्ट नहीं समझ में आ रही है तो मैं डाल रहा हूँ पाइथन लिंक लिस्ट एक्सप्लेनेशन कोड विद हैरी। अगर होगी तो उसकी आ जाएगी, नहीं है तो फिर तुम्हें किसी और पे रिलाई करना है। तो फिर तुम फिल्टर कर सकते हो अपने हिसाब से कि कौन सी वीडियो तुम्हें पसंद आ रही है। बट मैं यूजुअली बस ऐसा करता था, एक बार मैंने सीख ली लैंग्वेज अपने फेवरेट यूट्यूबर की प्लेलिस्ट से, जो कि 3-4 मैंने नाम लिए। हम मेरे टाइम पे वही थे, अब तो बहुत बढ़ गए हैं, मेरे टाइम पे वही थे। सो उसकी मैंने करी एंड देन उसके बाद मुझे कोई डाउट या क्वेरी आई तो मैं सीधा गूगल पर डालता था। गूगल पर डालने के बाद मेनली मेरे जो दो रहते थे सोर्सेज, वो रहते थे स्टैक ओवरफ्लो। एंड स्टैक ओवरफ्लो के बाद मैं दूसरी चीज़ जो रेफ़र करता था, दैट वाज यूट्यूब। और यूट्यूब पे भी बस सर्च किया एंड जो भी फर्स्ट सेकंड वीडियो आई अच्छे व्यूज़ वाली और हेल्पफुल, लाइक उसमें लाइक देख के भी तो समझ में आता है कि ये हेल्पफुल है कि नहीं वीडियो, या कमेंट्स देख के। सो वैसे, सो दिस इज़ हाउ यू अप्रोच थिंग्स, दिस इज़ हाउ आई अप्रोच थिंग्स। ओके, थैंक यू सर। भूमि, अपना क्वेश्चन पूछ लो प्लीज। Bhumi, are you there? गुड इवनिंग सर। Evening. प्रांजल सर। आवाज़ गई प्रांजल। सर एम आई ऑडिबल? यस। सर एक सवाल काफी आ रहा है सर स्टूडेंट्स की तरफ से कि पैशन या प्लेसमेंट, काफी ज्यादा पूछा गया है सर। ये थोड़ा सा इसके बारे में बताइए सर। पैशन या प्लेसमेंट? हाँ सर, ये काफी ज्यादा मतलब एक तो इंस्टाग्राम ही वाली जनरेशन है अपनी सर, तो इतना ज्यादा ये आता है कि पैशन है प्लेसमेंट, तो अरे इसका बताइए सर। ये प्रांजल दुबे है क्या? हाँ सर। हाँ सर वही। अच्छा अच्छा, हाँ, वही जानी पहचानी आवाज़ लगी। चलो, अरे क्या सीन है कि
अरे यार, ये बहुत वैसा क्वेश्चन है ये। कैसे जॉब तो करनी पड़ेगी, यही पैसे तो कमाओगे। तुम्हारा पैशन ऐसा है, मान लो उसमें तुम्हारा इन्वेस्टमेंट ही हुए जा रहा है और तुम्हें कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है, तो तुम यार कर्जा लेके डूबोगे तो है नहीं, तो तुम करोगे, जॉब तो लोगे मजबूरी में। फिर तुम कर सकते हो धीमे धीमे अपने पैशन पर स्विच की। तुम्हें मतलब तुमने जैसे तुमने जॉब ले ली, ठीक है। जॉब में तुम्हें इतना नहीं मिल रहा है, या जो भी सीन है, मिल भी रहा है तो भी तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है, या जो भी है, ठीक है। तुम करे करे 1 साल करा, तुमने अपनी सेविंग्स बनाई तुमने। उसके बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे तुम साथ में अपना पैशन साइड भी बिल्ड कर रहे हो। तो जैसे मान लो मेरा पैशन, मुझे फिल्म मेकिंग बहुत पसंद है। अपार्ट फ्रॉम कॉर्पोरेट, मैं अगर मुझे कोई बोलेगा फिल्म मेकिंग कॉर्पोरेट, तो मैं फिल्म मेकिंग चूज़ करूँगा, कॉर्पोरेट में छोड़ दूंगा। सो तो मैं, अगर मुझे टाइम मिलता है, अभी तो नहीं मिल रहा है, बट इन फ्यूचर जब भी मिलेगा, मेरा रहेगा ये टारगेट कि मैं साथ में अपनी फिल्म मेकिंग चीज़ को भी धीमे धीमे कंटिन्यू करूँ, या अपनी टीम बनाऊँ साइड बाय साइड, और फिर धीमे धीमे मैं मूव करूँ कॉर्पोरेट टू माय पैशन। बट वो ऐसा सडन नहीं होगा कि मैंने सोचा कि फिल्म मेकिंग करनी है, मैंने पूरा अपना उठा के हटा दिया कॉर्पोरेट पूरा, या आईटी वाईटी पूरी प्रोफाइल अपनी सब हटा के मैं फिल्म मेकिंग में आ गया, और उसमें फिर कुछ हो नहीं पाया और निपट गया सब माहौल। फिर अब मैं वापस अपने आईटी वाले में भी नहीं जा पा रहा हूँ सस्टेन करने के लिए। सो पैशन साथ में रखो, कंटिन्यू करो। एक टाइम पे जब तुम्हें समझ में आ जाए कि अब ये पैशन इंडिपेंडेंटली स्टैंड कर सकता है, विद स्टैंड कर सकता है, और तुम्हें एक सोर्स ऑफ इनकम दे सकता है, तब वो टाइम है कि तुम अपना कॉर्पोरेट या मतलब जो भी तुम साइड में अपनी जॉब कर रहे हो जिस भी जगह पे, वो क्विट करके अपना कर सकते हो। सो दिस इज व्हाट आई वुड रिकमेंड, अ सेफ प्लान टू गो विद। ठीक है। Yes, यस। और कोई क्वेश्चन हमें एड्रेस करने का चैट से? मैं चैट नहीं पढ़ रहा हूँ, और सर तो आई हैव अ क्वेश्चन। हम्म। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे हम लिंक्डइन प्रोफाइल को अच्छा करना होता है, तो उसके लिए कुछ प्रोजेक्ट्स अपलोड करते हैं हम उस पे ताकि वो अच्छी दिखे। तो जैसे मुझे वेबडी में करना है, तो किस टाइप के प्रोजेक्ट ज़्यादा अपीलिंग लगते हैं, वो कहाँ से मतलब बना सकते हैं, कहाँ से देख सकते हैं, ऑल्सो कनेक्शंस कैसे बिल्ड करना है लिंक्डइन पे, इतना क्वेश्चन। ओके। सो इसके 3 पार्ट्स में क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं आंसर करूंगा कि प्रोफाइल में कैसे बनानी है। तो प्रोफाइल में बहुत सारे, जो जो तुम्हारे पास चीज़ें हैं उसमें बहुत सारे सेक्शंस होते हैं। फॉर एग्जांपल वॉलंटियरिंग, एजुकेशन, वर्क एक्स, सर्टिफिकेशंस एंड प्रोजेक्ट्स, ठीक है। अब इसमें तुम्हारे पास एग्जिस्टेंटली तुम, एजुकेशन तो है ही ऑब्वियसली, जहाँ तुम पढ़ रहे हो तो वो डालोगे। वर्क एक्स जिनके पास नहीं है वो छोड़ दो, या वर्क एक्स में तुम वो मत डालना। बहुत लोग ये गलती करते हैं कि वर्क एक्स में डाल देते हैं कॉलेज में कुछ कुछ थे, प्रेसिडेंट थे इस क्लब के या उस क्लब, वो वर्क एक्स में नहीं आता भाई, वो वॉलंटियरिंग में आएगा, ठीक है। उसको तुम एज ए वो नहीं डाल सकते अपने वर्क एक्स में कि तुमने यहाँ वो कर रहा, तुम प्रेसिडेंट थे इस क्लब के, या वो सब कुछ काउंट नहीं होता। वर्क एक्स में केवल कंपनी देंगे। अगर नहीं है, इंटर्नशिप भी नहीं करी है, तो छोड़ दो उसको, खाली छोड़ दो। फिर वॉलंटियरिंग में तुम डालोगे अपना ये जो मैंने बताया, तुम अपने कॉलेज में या कोई भी ऐसी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में क्या थे, तुमने क्या वॉलंटियर किया, एनएसएस, एनसीसी, ये सब वॉलंटियरिंग में जाएगा। और प्रॉपर ऐसा उसको टैग करना, जैसे तुम जब भी तुम अपलोड करोगे तो उसमें वो पूछता है, मतलब वो सजेशन देता है कंपनी के, तो उसको क्लिक करना। उसको अगर तुमने सिर्फ ऐसा वर्डिंग करके छोड़ दिया तो वो उसकी प्रोफाइल पे नहीं आएगी, तो वो थोड़ा सस्पिशियस लगता है कि किया भी है कि नहीं किया है। सो जो भी तुम कंपनी में या वॉलंटियर जिसके लिए भी कर रहे हो ऑर्गेनाइजेशन के लिए, वो होगी लिंक्डइन पे मोस्ट प्रोबेबली। सो उसको टैग करना उस कंपनी को, उसमें उसका चूज करना प्रॉपर ड्रॉप डाउन में जाके, और उसका जो भी तुमने किया है डिस्क्रिप्शन में मेंशन करना, स्किल्स मेंशन करना क्या तुमने यहाँ पे एनहांस करी, एंड यू शुड बी गुड। और फिर उसको टाइमलाइन वाइज या जो भी वाइज सब अपडेट करना, सारे जितने भी वॉलंटियरिंग में। और सेम गोज विद प्रोजेक्ट्स। सो अगर प्रोजेक्ट्स तुमने करे हुए हैं, सो उस प्रोजेक्ट की लिंक देना। ये सब आई थिंक मैंने अपनी प्रोफाइल में करे हुए हैं, प्रोजेक्ट्स तो मैंने डाले भी हैं। सो मेरी प्रोफाइल रेफर कर सकते हो उस चीज़ के लिए। एग्जैक्ट कॉपी मत करना, क्योंकि कॉपी करोगे तो उसमें तुम्हारा फायदा नहीं, क्योंकि तुम फ्लैग में आ जाओगे, या जो भी सर्च करोगे तो मेरी प्रोफाइल ऊपर आएगी, तुम्हारी नहीं आएगी। क्योंकि मेरी पुरानी ऑब्वियसली और मेरे में ज़्यादा कंटेंट है, तो वो गूगल जो है वो ऊपर उन्हीं को रैंक करता है यूजुअली जो थोड़ा सा ओल्ड हो और क्रेडिबल कंटेंट हो। सो अगर तुम कॉपी पेस्ट करके डालोगे और तुम चाहोगे कि वो तुम्हारे सर्च में आ जाए या लिंक्डइन सर्च में भी आ जाए, सो वो तभी आएगी, या तो कि ओरिजिनल कंटेंट डालोगे बेसिकली तभी आएगी। अगर तुम कॉपी पेस्ट करके मेरा डाल रहे हो, किसी का भी डाल रहे हो, सो उसी की प्रोफाइल जिसकी आ रही थी उसी के ऊपर आएगी, तुम्हारी उसकी जगह पर नहीं आएगी। सो मैं रेकमेंड करूँगी एक बार रेफरेंस ले लो, डालो अपना खुद का। और हर चीज़ के लिए तो यार एआई के टूल्स हैं आजकल, सब हो जाता है।
ठीक है, मेरे टाइम पे तो जब मैंने अपना किया था उस समय तो नहीं था ये सब। चैट जीपीटी अभी आया, पिछले 1 साल पहले भी नहीं, आई थिंक नवंबर 2022 में आया, 1 साल भी नहीं हुआ है। सो उसके पहले सब हम खुद ही करते थे, बट तुम्हारे पास तो बहुत है और बहुत आसानी हो गई है अब। ठीक है, सो ऐसा भरो, प्रोजेक्ट्स भरो। देन उसके बाद एजुकेशन वाला प्रॉपर भरो कि तुम्हारे क्या, तुम क्या पढ़ रहे हो, वो सब चीज़ें। एंड अपना उसको हेडलाइन बोलते हैं शायद। हेडलाइन भरो अपने लिंक्डइन की कि तुम क्या कर रहे हो अभी, या क्या तुमने किया है वो सब, या करेंटली, या एक्सपोजिशंस, या पढ़ रहे हो तो वो लिखो अपना जो भी। और एक प्रोफाइल पिक्चर ऐसी वाली मत डालो कि तुमने सेल्फी ले ली ऐसे लेके अब वो सेल्फी अपलोड कर रहे हो अपनी लिंक्डइन की प्रोफाइल पिक्चर पे। अच्छी वाली डालो, रियर कैमरा से ली गई, एक अच्छे बैकग्राउंड में, फॉर्मल कपड़े हों तो बेटर है। क्लीन प्रोफाइल लगनी चाहिए, क्योंकि ये वो पॉइंट्स हैं जो मतलब एक तो स्किल हो गई, ठीक है, स्किल्स तो हैं ही जो हैं तुम्हारी। इसके अलावा जो तुम्हें ब्राउनी पॉइंट्स चाहिए, ब्राउनी पॉइंट्स एज एन एड ऑन पॉइंट जिसमें तुम लिटरली आगे निकल सकते हो किसी से भी। सो वो यही वाले पॉइंट्स हैं कि तो प्रोफाइल नीट हो, सीवी क्लीन हो, और ये करना मुश्किल काम नहीं है। तो इसी में तुम्हें ब्राउनी पॉइंट्स मिलते हैं, जो लोगों को नहीं, जिन लोगों को नहीं पता तुम उनसे तो एटलीस्ट आगे निकल ही जाओगे, और वो फिल्टर आउट हो जाएंगे तुमसे। भले ही वो तुमसे ज़्यादा टैलेंटेड होंगे, बट ये चीज़ें तुमने करी हैं, प्रेजेंटेबल लग रहे हो, तो इंटरव्यूअर को आसानी होगी ना तुम्हें देखने में। अब तुम, कोई बंदा भीड़ में घुसा हुआ है एकदम, और जो भी है, मतलब एक रैंडम एग्जांपल दे रहा हूँ, और एक बंदा किसी को क्लियरली दिखाई दे रहा है काम, मतलब उसको उसको थोड़ा कम काम आता है, बट उसको स्पॉट ऑन करना इजी है, वो भीड़ में से निकालना उसे, या दिख रहा है, वो प्रॉपरली विजिबल है, उसकी विजिबिलिटी बेटर है, और समझ समझ आ रहा है सामने वाले को कि वो कन्वे कर पा रहा है अपनी चीज़ें बेटर तरीके से, बजाय उसकी जो ज़्यादा टैलेंटेड है। सो 99.99% केसेस में ये होता है कि जो ज़्यादा टैलेंटेड है उसको नहीं मिलती, और जो ज़्यादा अपने आप को प्रेजेंट कर पा रहा है और शो कर रहा है अपना इंथुजियाज्म, या कन्वे कर पा रहा है अपनी बेटर चीज़ों को, उसको ज़्यादा प्रेफरेंस मिलती है। ये 99% केसेस में होता है। सो मेरे साथ भी यही हुआ था, मेरी जॉब में भी यही, मेरे को एक्सपीरियंस क्या 1.5 साल का था उस समय, मेरे स्टार्टअप का ही हो भी मैनेजमेंट में। और मेरे से साथ में 6 से 7 साल एक्सपीरियंस वाले लोग भी थे जो मेरे साथ प्राइम लैब्स के इंटरव्यू में थे, क्योंकि आई थिंक बहुत एप्लीकेशंस थी, आई डोंट नो, होंगी कम से कम 1000 तो एप्लीकेशंस थी आई गेस। तो उसमें से उन लोगों ने आई थिंक 12 ऑपरेशंस मैनेजर मैनेजर सेलेक्ट किए थे। सो बहुत वर्कएक्स वाले थे, एक ओरेकल का 10 साल एक्सपीरियंस था, एक आई थिंक माइक्रोसॉफ्ट से आया था, और कुछ यूएस के थे। सो वो ऐसा सीन था। सो मेरे को ऐसा लगता है कि जो मेरा प्रॉब्ली ब्राउनी पॉइंट जो मुझे मिले, या जो मेरा एक्सपेक्टर उसमें ये था कि मैंने अपने आप को ज़्यादा बेटर तरीके से प्रेजेंटेबल और डिसिप्लिन्ड रखा। और क्योंकि आई थिंक मैंने ये मेंशन किया था अपनी पॉडकास्ट में भी कि मेरी मीटिंग्स जो थी बहुत लेट लेट रखते थे रात में, तो मुझे बहुत इनकन्वीनियंस होता था ज्वाइन करने में भी। सो आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस अपनी साइड से लेना पड़ेगा अगर आपको कहीं बेटर पोजीशन में जाना है। सो मेरी मीटिंग वो सुबह के 3, 3:30 बजे, 4 बजे रखते थे फॉर इंटरव्यू, और कभी कभी उसमें शो अप भी नहीं होते थे क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत बिजी हैं उनके ऑर्गेनाइजेशन भी। सो सीईओ या सीओ जो भी इंटरव्यू मेरा ले रहा था, वो भी कभी कभी नहीं आ पाता था, तो ऐसा 3, 4 दिन डिले हुआ, बट उसमें आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। सो ये चीज़ें रहती हैं अगर करना। और अब कमिंग बैक टू द क्वेश्चन अगेन, प्रोफाइल बनाने के लिए, सो लिंक्डइन पे ये सब मेंटेन करोगे। एंड समटाइम्स आई थिंक आई वुड रेकमेंड कि तुम्हें कहीं से अगर लिंक्डइन प्रीमियम मिल रहा है, खरीदना तो रेकमेंड नहीं करूँगा मैं, क्योंकि बहुत महंगा पड़ता है, 3700 रुपये महीना है शायद, वो 3700। सो कभी कभी मैं, या ऐसे बहुत सारे लोग हैं लिंक्डइन पे जो फ्री गिव अवेज करते हैं, तो मैं यूजुअली कम खरीदता हूँ। अभी मैंने लास्ट टाइम 2 महीने, 1 महीने पहले खरीदे थे, अभी आई थिंक 1 2 हफ्ते पहले दोबारा खरीदे थे मैंने, बट वो कम ही क्वांटिटी में मैं खरीदता हूँ, आई थिंक 20-25 कुछ रहते हैं। सो वो तुम थोड़ा ट्रैक करके रखना, मैं लिंक्डइन पर डालता रहता हूँ कि मेरे पास कुछ आ गए हैं नए लिंक्डइन प्रीमियम्स। सो वो 2-2 3-3 महीने, 6-6 महीने के भी होते हैं कभी कभी, तो उससे थोड़ा फ़ायदा मिलता है। प्रीमियम हो तो तुम अप्रोच कर सकते हो, किसी को भी मैसेज कर सकते हो उठा के लिंक्डइन पे, और वो तुम विजिबल हो जाओगे उसे, वरना तुम नहीं कर सकते शायद मैसेज, ऐसा सीन रहता है कुछ। वो प्रोफाइल टू प्रोफाइल डिपेंड करता है, मैंने ऐसा ऑन करके रखा है कि मुझे मैसेज कर सकता है कोई भी जो चाहे, बट बहुत प्रोफाइल में ऐसा रहता है जिनके पास प्रीमियम है वही मैसेज कर सकते हैं। सो उसका भी फ़ायदा रहता है, अब तुमने ये मेंटेन किया, अगर तुम लिंक्डइन ही इकलौता मेंटेन कर लो ना, और बाकी किसी प्लेटफॉर्म पे ना रहो, ग्लास, इंडोर, ये सब, तो वहाँ पे हर जगह ये ऑप्शन रहता है अप्लाई विद लिंक्डइन। सो अगर तुम सिर्फ लिंक्डइन ही पे ही अच्छे तरीके से हो, तो वो तुम्हारी लिंक्डइन प्रोफाइल उठाएगा, स्क्रैप करेगा, स्क्रैपिंग मतलब उस डेटा को एक्सट्रैक्ट करेगा, और ग्लास, जो भी दूसरी वेबसाइट हैं, ग्लास रोज, इंडीड, या और भी जितनी भी साइट हैं, सब लिंक्डइन रेफर करती हैं, उन पर जाके वो डाल देगा तुम्हारा डेटा। सो अगर तुमने लिंक्डइन ही अच्छे से मेंटेन कर लिया, सो
दैट इज़ मोर देन इनफ। हर जगह फिर तुम लिंक्डइन से अप्लाई कर सकते हो। एंड सीवी तो हर जगह चलेगी, सीवी और लिंक्डइन तो दो चीज़ें तो मैं कहूँगा मेनली मेंटेन करनी है, बाकी सब चीज़ें सेकेंडरी हैं दूसरी वेबसाइट्स का जो मैंने नाम लिया। आंसर क्वेश्चन। Yes, sir. Thank you. So I feel like सभी के क्वेश्चन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं एंड we will just end this session with few more questions. So सबसे पहले तो सर ये बोला जाता है कि obviously you are successful, तो आप इसको क्रेडिट किसको दोगे? क्रेडिट किसको दूंगा यार? Obviously you जेनेरिक क्वेश्चन है take ये credit. ये बहुत जेनेरिक है। इसलिए फैमिली और फ्रेंड्स को क्रेडिट दूंगा, बहुत सपोर्ट किया है मेरी फैमिली ने भी और मेरे फ्रेंड्स ने भी जो मेरे साथ कॉलेज में थे, मेरा जो ग्रुप था बेसिकली, वो मेनली क्रेडिट बना जाएगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थोड़ा क्रेडिट मैं खुद को दे दूंगा कि ठीक है मैं कर रहा था डिसिप्लिन वाइज और मतलब बेसिकली कंसिस्टेंसी मैं मेंटेन कर रहा था। भले ही स्किल्स अगर मेरी उतनी प्रॉपर नहीं थी जितनी चाहिए, बट मैं कंसिस्टेंट था कि एटलीस्ट एट वन पॉइंट ऑफ टाइम मैं उन लोगों से आगे निकल जाऊंगा कंसिस्टेंट रह के, जो लोग मेरे से ज़्यादा जानते हैं। सो वो हुआ भी। सो इसलिए इसलिए मैं यूजली सबको बोलता हूँ कि भाई अगर तुमसे नहीं भी हो रहा है, सो अगर तुम कंसिस्टेंट रहोगे तो उन लोगों को तुम आराम से बीट कर सकते हो जो तुमसे ऑलरेडी ज़्यादा आगे हैं या ज़्यादा जानते हैं। सो ये मैसेज मैं देना चाहूँगा सबको। हैंड रेज हुआ है, एक क्वेश्चन ले लेते हैं, एक लास्ट। हम्म। Hello, sir. Good evening. Good evening. So, my name is Brajraj Mishra. I'm from CSD second year. So, my question is that what's the most unexpected or unconventional strategy or decision that contributed to your success? Oh, that's a nice one actually. Last question, but nice one. बहुत unexpected था. So I was working uh, I was working in my startup itself, right? So I think it was February. So one of my client from the US asked me to apply for this job. That was a turning point again. Uh, I don't I don't like to work 9 to 5 again, but that was still I would call that a turning point in my life because वहाँ से I got a chance to hop into corporate sector, actual corporate sector of US, that too remotely. So one of my clients, I think in the US, probably he was residing in New York State only. So New York State है पूरी, and the New York City is the capital of that. So I think the client was, I think, in the New York State, not in the New York City. But he knew one of this company, Prime Labs, which was established in the New York City, and he told me that I have one of my company that is blockchain based and they are looking for product operations manager profile. So I think you align quite good with the profile and probably you have that experience which will get you a good fit for that, makes you a good fit for that. So randomly I just applied with my resume, and I think the form was also not very big. So uh, I just randomly applied and I got a call. So they told me that they liked my profile and they gave me one assignment. That too, I totally ignored for a week. And I think on the last 2 days, I did that assignment because I was busy with my startup. I was actually very much into my startup that okay, I have to build this company big and large. So I was at that point of time with that mindset. So I didn't pay much attention to that one because also I was thinking that probably I won't get this job. How will I get this job? I mean, a lot of people who are already more talented than me would also be applying again, and I was able to see the entries over there. So it was kind of like that software which where you can see the entries, that how much entries are totally. So I think there was 980 entries or something when I was applying in that one. So but eventually I got a call, and they gave me one assignment that was a technical one. So you have to code. I think probably a little bit of coding was required and a DBMS architecture schema which you have to build for the product. So that I did in the last 2 days. I submitted. Then again, I got selected for the next round. They gave me another assignment that was for the product management side, basically, not the technical side.
And then again, I did that as well. I think it was 5 rounds or 6 rounds when I got selected. The second last round was with the COO, which was the connection again with my client. So he already knew me. So we had a great talk there. And then last round was with the CEO. So after that, I thought I was not able to answer, I think, 2 or 3 questions what CEO asked me. But then again, I had no hopes. I didn't had any expectations as such that I would get selected. So any which ways, I was happy. Okay, I at least got to know. I got at least till 6th round or 7th round. So I was like, okay, and I just forgot about that as well. So after 2 days, I got the email that you have been shortlisted and you've been selected. So that was kind of a turning point for my life, which I thought, okay. And for 1 month at least, I didn't reveal that thing anywhere, not even in college, just in my family. But I think somewhere or somehow someone got to know that I got placed and they published in newspaper. So that's where how I think college got to know and everybody got to know. So that thing I would say uh, kind of unconventional, which I didn't thought of, but actually it went quite well. Yes, sir. So we can say that that was your eureka moment kind of thing. Yes, absolutely. Yeah. So actually एक दो क्वेश्चन और था लेकिन if you would like to answer them, but because वो webinar के related नहीं है, but will you answer them, sir? Yeah, sure. I think we can have this meeting extended, I think 5 to 10 minutes more. Then I have some work. Okay, fine, Okay, fine. okay, sir. Okay, sir. So the एक question सेकंड is that बस एक सेकंड देना मुझे, मैं चेक कर लूँ. Yeah, I have 15 minutes. Yes, we can conclude. okay. So this is very normal and like fun questions. So right now you are in US, and is there any culture shock you witnessed there? Yes, जो कि आप शेयर करते हो yes. प्लीज. Of course. So या ये मैं हिंदी में समझाना चाहूँगा क्योंकि फील हिंदी में आएगी इस क्वेश्चन की. So, हम लोग इंडिया में रहते हैं. इंडिया में हम सारे काम क्या बोलते हैं, मतलब सारे काम हम खुद नहीं करते, हमारे फैमिली वाले हमारे को करके दे देते हैं या जो भी चीज़ है. हमारे हमारे पास हेल्पर्स होते हैं इंडिया में, ठीक है. हम अपने आराम से बैठते हैं, ज़्यादा काम नहीं होता और बहुत इजी लाइफस्टाइल मुझे लगती है. जैसे ही तुम यूएस में आओगे तुम्हें पता चलेगा कि यहाँ पे जो तुम काम कर रहे हो, चाहे जॉब है, इंटर्नशिप है, पढ़ाई है, वो तो तुम्हारी खुद की है ही जो इंडिया में होती है. एडिशनली तुम्हें यहाँ पे सारे खुद के काम करने पड़ते हैं. फॉर एग्जांपल बर्तन धोना, तुम्हारे को घर साफ करना, तो अपना खुद का बिस्तर लगाना, कपड़े धोना. हालांकि सब मशीन से होता है यहाँ पे, सब ऑटोमेटेड है, बट करना पड़ता है. तुम्हें उसके लिए स्पेसिफिकली टाइम देना पड़ेगा. खाना बनाना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जिसको नहीं आता खाना बनाना, भाई तुम्हारे लिए यूएस बहुत टफ होगा. एंड नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये बाकी यहाँ पे थोड़ा सा सोशल लाइफ उतनी नहीं होती जैसे इंडिया में होती है. हम यूजुअली इंटरेक्ट कर लेते हैं अपने अपने फ्रेंड सर्कल, उसमें यहाँ पे बनता है फ्रेंड सर्कल, तो वो बहुत लिमिटेड रहता है. सो दैट इज द थिंग. जस्ट अ सेक. एक सेकेंड गाइस, 2 मिनट रुकना बस. ओके सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. मेरा एक्चुअली फ्रेंड आया था कुछ काम से. ओके. हाँ, तो यहाँ पे तो मैं एक्सपेक्टेशन अगर तुम ऐसी लेके आओगे कि सब कुछ आसान है, तो बहुत गलत सिनेरियो है वो. यहाँ पे सब कुछ उल्टा है इंडिया से. जो है लिटरली चीज़ें भी उल्टी हैं, ट्रैफिक सेंस भी उल्टा है, सब चीज़ें उल्टी हैं यहाँ पे. सब इंडिया से प्रॉपर अपोजिट होता है. और अगर तुम खासकर वेजिटेरियन या मेरे से, मैं वेजिटेरियन हूँ, और तो तुम्हें बहुत दिक्कत आने वाली है. यूएस इज़ वेरी टफ. सर एक और क्वेश्चन आया, लोगों ने पूछा है कि आफ्टर अ लॉन्ग हेक्टिक स्केड्यूल और अ डे आप अपने दिन को अनवाइंड कैसे करते हो? लाइक व्हाट डू यू डू एट क्लास? तो आई थिंक प्रॉब्ली जब मैं
सब चीज़ों से फ्री होके रात को बैठता हूँ तो मैं यूजली थोड़ी देर अपना फ़ोन चलाता हूँ, देखता हूँ कि क्या सोशल मीडिया पे कैसा क्या है, एंड देन बुक वुक रीड करना मैं नहीं प्रेफर करता ज़्यादा। मतलब बहुत लोग पढ़ते हैं ऐसे रात को, यहाँ पे नॉवेल्स कल्चर है यूएस में, सो मैं वो नहीं करता, मैं इंडिया में भी नहीं करता था। सो मैं यूजुअली या तो आई थिंक गाने सुन लेता हूँ, या फिर अपना फ़ोन चेक कर लिया क्या मैसेजेस क्या चल रहा है, या फिर मेरे को एक ऐप बहुत पसंद है जिस पे मैं न्यूज़ पढ़ता हूँ, सो दैट इज़ इन शॉर्ट्स। सो वो मैं ये मतलब रात को जब आराम से सब काम खत्म होकर बैठता हूँ तो मैं ये सब चीज़ें प्रेफर करता हूँ यूजुअली, या पॉडकास्ट वगैरह सुन ली किसी की, ये सब चीज़ें। सर आप और सर सर जस्ट टू इन्फॉर्म द ऑडियंस कि सर सिंगिंग बहुत अच्छा करते हैं। थैंक यू भाई, थैंक यू। yes, हाँ ये sir, ये there is one more question. What is the adventurous thing you have done beside your professional life? Like the most adventurous thing ever done? यार अभी तक मैंने नहीं किया वैसे एडवेंचर एज सच। एडवेंचर एज इन तुम क्या लिटरल मीनिंग में बोल रहे हो कि एडवेंचर होता है प्रॉपर? Yeah, in this टाइप नहीं, अभी meaning. तक मैंने नहीं किया एक्सप्लोर, बट हाँ यहाँ पे यूएस में बहुत चीज़ें हैं वो सब करने की, तो प्रॉब्ली प्लान है करने का, तो यहाँ करूँगा मैं। ओके, आई थिंक वी लॉस्ट आयुषी। शायद उसका नेटवर्क इशू होगा। ओके, चैट्स की तरह आई थिंक अगर क्वेश्चन हम नहीं ले पाए हैं तो हाँ एक बार चैट देख लो सर। आई थिंक ले लिए हैं, सारे जेनेरिक ही हैं। अगर किसी को है तो हैंड रेस करके कर सकते हो। आई थिंक वी हैव, ओके वी ओनली हैव 5 minutes नाउ। फटाफट से क्वेश्चन लेते हैं, इसके बाद मेरी एक कॉल है 10 मिनट में। ब्रजराज क्वेश्चन है क्या? So one question more, sir. Uh, can you describe a moment when you had to step out your comfort zones to achieve success? है ना यार, मतलब कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा। सो फॉर एग्जांपल अगर अगर पर्सनली बात करूँ तो मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी हूँ, मैं बहुत ज़्यादा आलसी हूँ, मुझे ज़्यादा हेक्टिक वो पसंद नहीं है। मुझे सब क्लीन और शॉर्ट चीज़ें पसंद है कि मुझे पता हो ये करना है मुझे, एंड देन आई विल बी ओके विद दैट। एंड मुझे वर्कआउट करना भी बिल्कुल नहीं पसंद, बट ये सब चीज़ें मैं कंफर्ट जोन से बाहर निकल के करता हूँ। एंड यहाँ यूएस में भी मतलब ऐसा था कि ठीक है, आई वॉज वेल सेटल्ड इन इंडिया एज वेल, जो भी मैं कर रहा था, बट And अगेन sir, आई। is there any pivotal failure or setback that ultimately propelled you forward? ये तुम चैट जीपीटी से पढ़ के बोल रहे हो क्या? No, sir. मतलब क्या कोई फिर मतलब से? आपका जो जिस ऐसा कोई सक्सेस या फेलियर है जिसने मतलब आपको बिल्कुल आपके टारगेट की तरफ प्रोपल्ड कर दिया? आई थिंक मतलब ऐसा तो नहीं था यार, क्योंकि नहीं सर, ऐसा होता है ना, जैसे अगर कोई हमें कोई बहुत बड़ी सक्सेस अचीव हो जाती है, कोई अचीवमेंट मिल जाती है, या फिर कोई बहुत ज्यादा हम फेल हो जाते हैं कहीं पे, तो उससे फिर हम अपने टारगेट की तरफ बहुत ज्यादा मतलब प्रोपल्ड हो जाते हैं। हम्म ऐसा कोई पॉइंट? हाँ ये तुम कह सकते हो। जब मुझे आईआईटी में सिलेक्शन नहीं मिला था तो मैं सोचा था कि अपने सारे आईआईटी वाले दोस्तों को पछाड़ के दिखाऊंगा मैं। यस। तो फिर उसके बाद से आपने फर्स्ट ईयर से ही कोडिंग स्टार्ट कर दी थी? हाँ मैंने कर तो दी थी फर्स्ट ईयर से, बट मैं यूजुअली वो रेकमेंड नहीं करता, क्योंकि जो मैंने कोडिंग करी थी वो मेरे कुछ काम नहीं है फर्स्ट ईयर में। मैंने कुछ और ही किया सेकंड थर्ड ईयर में जाके, जो कोडिंग में मैंने किया ना। सो फर्स्ट ईयर का मैं भूल भी चुका था, क्योंकि मैंने सेकंड ईयर में थोड़ा सा ब्रेक किया था कोडिंग से, ऐसे मस्ती वस्ती करने के लिए कॉलेज में, तो मैं सिर्फ सब्जेक्ट से फोकस कर रहा था। सो थर्ड ईयर तक पहुँचते पहुँचते मैं भूल भी गया था मैंने क्या किया फर्स्ट ईयर में। थोड़ा बेस था कि हाँ डीकेसी बीपीसी करी थी थोड़ी सी, बट जो मैंने थर्ड ईयर में इवेंचुअली किया वो उससे बहुत अलग था। सो मैं यूजुअली यही रिकमेंड करता हूँ, थर्ड ईयर से स्टार्ट करो, फर्स्ट सेकेंड ईयर में तुम एक्सप्लोर करो, मज़े करो, क्योंकि ये जो मतलब 4 साल है ना ये सीरियसली अगर जैसे हमें स्टार्ट करना है किसी फिक्स डोमेन पे, वो थर्ड ईयर से स्टार्ट करें? उस डोमेन को लेकिन तुम्हें एक्सप्लोर करना ज़रूरी है, जैसा मैंने बोला एक्सप्लोर, और उस पर स्टार्ट करना है एक्चुअल में बैठ के, सब कोडिंग वोडिंग है जो भी इन डेप्थ घुसना,
वो सब चीज़ तुम्हें थर्ड ईयर से करनी है, बट जो तुम्हें नॉलेज हो जानी चाहिए उस प्लेटफॉर्म की एट अ हाई लेवल की तुम क्या करने वाले, वो तुम्हें सेकंड ईयर से पता होना चाहिए। ओके सर, एक्चुअली होता क्या है, जैसे दूसरे स्टूडेंट्स को देखते हैं जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर से ही इंटर्नशिप कर चुके होते हैं, बहुत ज़्यादा कुछ अचीव कर चुके होते हैं, तो फिर एकदम माइंड ब्लो हो जाता है ना कि हमने अभी कुछ भी नहीं किया, वो ऑलरेडी नहीं उस नहीं, ये तो देखो ये पोजीशन पे थोड़ा सा, हाँ ये एक इनसिक्योर वाली फीलिंग आती है कभी कभी, मुझे भी आती थी, बट हर किसी का, अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं मतलब एग्जांपल ले रहा हूँ इन जनरल, जैसा हमारे बैच का निकल गया अच्छा बाई चांस प्लेसमेंट, मेरे और भी दोस्तों का भी जेपी मॉर्गन में भी, मॉर्गन स्टैनली में गई थी वो, एंड अमेजोन माइक्रोसॉफ्ट सब गया। सो इसमें कुछ ऐसी बात नहीं है कि बहुत लोग यहाँ से निकलने के बाद भी एमआईटीएस के जो एलुमनाई बेस अगर तुम मिलोगे, so someone was not placed in a good job from MITS. I think विप्रो में 3.5 या 4.5 या 6.5 का पैकेज था, but she is in Adobe right now. She is my senior, I think 4 to 5 years senior. She is in Adobe at a 40 lakhs of package. So वो बाद में भी तुम अचीव कर सकते हो, तुम्हें ज़रूरी नहीं कि तुम्हें यहाँ से नहीं मिल रहा है कुछ तो तुम डिप्रेस हो गए, या ये होगा कि यार अब तो कुछ हो नहीं सकता, मेरे को तो विप्रो में डाल दिया है, 3.5 का पैकेज है, मुझे खर्चा भी नहीं निकल रहा है और मुझे बुला रहे हैं ऑन साइट, या मुझे मैं कुछ सीख नहीं पा रहा हूँ, या मुझे प्रोजेक्ट नहीं दे रहे। सो वो इवेंचुअली तुम अपस्किल करोगे अपने आप को, एक टाइम आता है सबका जिसमें सब एक्सेल करते हैं। तो ये कुछ इसलिए मैं कहता हूँ फिक्स रोड मैप नहीं है कि तुमने जो मैंने किया वो तुम फॉलो कर लो और मेरी ही सेम टू सेम तुम्हें मिल जाए। तुम हो सकता है मेरे से बेटर करो, तुम्हें तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल जाए 2 साल के बाद जो बहुत बहुत ज़्यादा बेटर हो, तुम्हें कुछ पता नहीं है ना उस चीज़ का। सो बस ओपन टू अपॉर्चुनिटीज़ रहो और अपने आप को बस अपस्केल करते रहो, उस पर मेन फोकस रखो तुम, क्योंकि ये यूजली जो एरा है ये अपस्केल करने का ही एरा है। अगर तुम नहीं करोगे अपने आप को तो तुम पिछड़ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे एक तो एआई भी आ चुका है पिक्चर में, और बहुत सारे सब लोग डिजिटल मूव हो रहे हैं टूल्स पे, सब कुछ जो ट्रेडिशनल तरीके थे वो सब मतलब ऑब्सोलीट हो रहे हैं। सो वो डिसकंटिन्यू हो रहा है, तो तुम्हें अपने आप को ऑब्वियसली अपस्केल करना पड़ेगा, सारे टूल्स टेक्नोलॉजीज बदल रहे हैं जो कंपनीज भी यूज़ कर रही हैं। सो तुम अगर वो उसमें इंटैक्ट रहोगे तो तुम कहीं नहीं जा रहे भाई, तुम्हारी जॉब कहीं नहीं जा रही, तुम्हें कंपनी रखेगी और अपॉर्चुनिटीज़ भी देगी। सो इट्स नथिंग टू डिप्रेस अबाउट कि अगर तुम्हारा कुछ नहीं हो पा रहा है, या कुछ सीनियर्स बहुत एकदम से लीप ले लिया उनने बहुत आगे, और फिर ऐसा भी होता है एकदम लीप आ गया फिर स्टैग्नेंट हो गए कुछ टाइम के लिए, फिर उनका फिर से टाइम आया वो फिर ग्रो किए, और तुम्हारा मान लो तुम एकदम शुरू अभी स्टैग्नेंट हो, कॉलेज के बाद निकले 2-3 साल तुमने काम किया, फिर तुम्हें कोई अपॉर्चुनिटी बेटर कंपनी मिली, क्योंकि तुम जैसे ही कॉर्पोरेट में जाओगे तुम्हारे कनेक्शन इवेंचुअली बनने लग जाएंगे और तुम खुद ही चाहो मिलोगे लोगों से, या अपने क्लाइंट्स के बेसिस, मतलब तुम्हें क्लाइंट मिलेगा कॉर्पोरेट में जाओगे, उन क्लाइंट से तुम्हारी बातचीत होगी, उनसे तुम कनेक्ट करोगे, वो तुम्हें अच्छे रिलेशन बनाओगे तो वो तुम्हें किसी कंपनी में रेकमेंड कर देंगे, क्या पता वहाँ पे तुम्हें और अच्छी अपॉर्चुनिटी मिले। तो ये कुछ फिक्स नहीं है, ये चलता रहता है ये सब, और मेनली कॉर्पोरेट तो यार मैं यही सबको बोलता हूँ कि स्किल्स हैं, बट जो लक और कनेक्शन वाला फैक्टर है वो भी बहुत ज़्यादा मैटर करता है, कि तुम उस बंदे से कनेक्टेड हो लकीली, जिसको पता है यहाँ हायरिंग हो रही है, उसने तुमने और उसके पास कोई रेफरल है लकीली जो तुम्हें मिला, सो दैट इज़ अगेन वेरी वेरी मच सिचुएशनल। सो वो कुछ कह नहीं सकते। So I think we should now sum up this, because eventually you have to go to. Uh, so, so I thank you for joining us, and I think सभी के questions address हो चुके हैं, और I thank you everyone to come and be a part of this webinar, and mostly sir, I'll thank you to come here and address us. So yes sir, thank you. अभी चैट वाले क्वेश्चंस हैं अभी। Pleasure is all mine. आज हमारे पास थोड़ा सा वैसे भी टाइम कम था और हमने थोड़ा लेट भी स्टार्ट किया है, सो हो सकता है ना एड्रेस हो पाए सबके क्वेश्चंस, मे बी अगर मुझे कभी दोबारा टाइम मिलेगा सो प्रॉब्ली हम रख सकते हैं, बट देखते हैं, आई थिंक दैट इज़ अगेन किसी को पता नहीं है। सो मैं कोशिश करूँगा, या फिर अगर तुम्हारे पास कोई और क्वेरीज हैं, सो मैं अपने फ्री टाइम में यूजुअली रात को जब बैठता हूँ या सुबह जब भी मुझे टाइम मिलता है, तो मैं अपने सोशल्स चेक कर लेता हूँ, किसी की कोई भी इंक्वायरी वगैरह आती है तो जो भी हेल्प वगैरह चाहिए, सो मुझे तुम यहाँ पे मैसेज करोगे तो मैं करूँगा, थोड़ा लेट हो सकता है रिस्पॉन्ड करूँ या टाइम लगे रिस्पॉन्ड करने में, बट मैं सबके मैसेजेस चेक करता हूँ, ऐसा मैं इग्नोर किसी के मैसेजेस नहीं करता। ठीक है, और एकदम जनरल इंक्वायरीज मत भेजना भाई, बहुत लोग ऐसा भेजते हैं कि सीधे क्वेश्चन पूछे व्हाट इज़ ऊप्स, ये तो भाई तुम गूगल पे देखो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। ठीक है, सो कस्टमाइज पूछ लो तो मैं और बेटर तुम्हें रिस्पॉन्ड कर पाऊंगा।
तुम जितना अपना कस्टमाइज क्वेश्चन मुझे बना के दोगे, तुम जितना जेनेरिक पूछोगे उतना मैं अवॉइड करूँगा आंसर करना। आंसर करूँगा बट मैं फिर वैसा ही रिस्पॉन्स दे पाऊँगा। ऊप मैं गूगल से छाप दूंगा ऊप्स क्या होता है और तो मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है। Thank you everyone for the lovely welcome and hospitality. We'll see you guys again sir. soon. Probably when I'm coming to India. I think मैं winter में आऊँगा, so मेरा शायद कॉलेज चक्कर लगेगा। So I'll see you guys there. ठीक है। थैंक यू सर कि आप मतलब आए मैसेज पे, कांटेक्ट करने पे आप अपना समय दिया, थैंक यू इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलो, see you guys. Bye bye. Take care. Bye bye. थैंक यू सर, Thank you, बाय sir. बाय। Thank you, sir. I request everyone to leave the meeting